কি করছেন স্যার? বলছি দাদা, স্যার আগে তুমি কি দেখিয়েছো ফিল্ম এফেক্টস ইন্ট্রোডাকশন মানে কি কি বলেছে সেটা তো বল। বেসিক ইন্ট্রোডাকশন ওই ওয়ার্ক স্পেসটা বুঝিয়েছে, মানে কি কি কোনটায় কি কি হয়। স্যার একটু বলে দেবেন, আগের দিন আমি ছিলাম না। একটু আরে স্যার স্যার পড়ায়নি তো, কুন্দলদা পড়ায়নি। আরে জানি সিট স্যার করেছেন তো, ঠিক আছে স্যার, স্যারের মতো একটু বলে দেবেন ইন্ট্রোডাকশনটা, তাই বলুন। মানে তোদের এখানে ইউআই সেটিংসে বলেছে যে কোথায় কি হয় এগুলো, তাই তো? এছাড়া কিছু করে দেখিয়েছে স্যার? হ্যাঁ, একটা ইয়ে দেখিয়েছে, একটা আগুন জ্বলিয়ে দিই। আমি যেটা করলাম এখানে সেটাতে একটা স্ক্রিপ্ট লিখলাম। স্ক্রিপ্টের থ্রুতে অ্যাকচুয়ালি কি দেখ, বারবার এখানে যাও, এখান থেকে গিয়ে ফিল্ম এফেক্টস নিয়ে এখান থেকে বারবার কাজ করো, আমার ঠিক পোষায় না। তো শর্টকাট ইউজ করি আমি খুব। এখানে একটা আমি বাটন ক্রিয়েট করে নিলাম, যেটা থ্রুতে আমি ডাইরেক্টলি যেখানেই থাকি না কেন, আমি যেরকমই থাকুক না কেন, মানে ধরো একটা রিসেট করে দিলাম, ফাইন, তুমি গেট ইট। আমি এখানে ক্লিক করবো, আমার ফিল্ম এফেক্টস ডাইরেক্টলি চলে আসবে, আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না সেসব নিয়ে। and I can directly create the container. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। Okay, so this is the thing. So খুবই ছোট্ট একটা স্ক্রিপ্ট আছে, কিছুই না। স্ক্রিপ্টিং এ যাবি, নিউ স্ক্রিপ্ট করবি, ওখানে লিখবি স্টার্ট ক্রিয়েশন, এস ক্যাপিটাল CART স্টার্ট, সি ক্যাপিটাল CREATION ক্রিয়েশন, object O capital BJCT object, then space and then say fume. মোটামুটি যে কোনো জিনিস আমরা এরকম শর্টকাট ক্রিয়েট করে নিতে পারি। সো লেটস সে fume, so F capital UME, F capital X, then space দিবি। this is the script, alright? এই স্ক্রিপ্টটা দিলে তোর আমি লিখে দেখাচ্ছি একবার। আমি অলরেডি এখানে লিখে রেখেছি, রাইট? so I can close it, I don't need ধর এটা একটা নতুন নিউ স্ক্রিপ্ট, এখানে লিখবি START স্টার্ট CREATION ক্রিয়েশন OBVCT অবজেক্ট, স্পেস মারবি লাইক ফিউম এফএক্স স্পেস। তো স্যার যেটা লেখা ছিল ওখানে কিন্তু স্টার্ট অবজেক্ট তারপর ক্রিয়েশন ছিল। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি, তাই জন্য এটা এখানে ব্ল্যাক এসছে, আমি ওটাই দেখছিলাম। ঠিক আছে, এটা এখানে ব্ল্যাক এসছে না, তার একমাত্র কারণ এটাই। let me show you something. start object CREATION object creation যখন लिखबो, जब मैं स्पेस मतलब प्रेस करूंगा ना, तो यहाँ पे ये ब्लू हो जाएगा, as you can see. It means ये जो है ना, यहाँ पे कोई इस लाइन इस सिंटेक्स में कोई गड़बड़ नहीं है। Then space fume effect, আমি যদি fume effect টা পুরো লিখি, अगर मैं पूरा लिखता हूँ कुछ इस तरह से, and sometimes it's not gonna recognize this one, okay? So क्या होता है हम लोगों को, जो इसका एक्चुअल जैसा दिखता है वैसे लिखना, मतलब जैसा है उसका फ्यूम इफेक्ट्स का जैसा स्पेल होता है ना, वैसा लिखना पड़ता है, क्योंकि उसी हिसाब से वो मतलब उसको जानता है मैथ्स ऐसा। देन स्पेस बार करने के बाद अगर ये ग्रीन आया, सो इट मीन इट कैन बी पॉसिबल टू क्रिएट अनदर टूल। अगर इसमें ग्रीन नहीं आया, इफ आई जस्ट गिव इट अ स्पेस बार, इट्स गोना बी ब्लैक,
तो मतलब इसके पास फ्यूम स्पेस इफेक्ट्स बोल के कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ दिस स्पेस. आई कैन रिमूव द स्पेस एंड प्रेस अनदर स्पेस बट सो नाउ इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड. और ठीक है कि नहीं है उसको देखने के लिए कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए मतलब सब सिलेक्ट करो, देन प्रेस शिफ्ट एंटर. करने के बाद इफ दिस स्क्रिप्ट लिसनर गिव्स यू दिस ओके साइन, इट मीन्स इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन. ये टूल जो है ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है. कहाँ है कैसा है वो सारा चीज तुमको यहाँ मिल जाएगा A to Z. ठीक है. So if gives is okay, it means your script is good. Then एक कस्टमाइज यहाँ से ले लो, कोई सी जगह से राइट क्लिक करके कस्टमाइज ले लो and you will get this one. Go to tool bar, use the new tool. It will give you a little bit of एक छोटा सा स्पेस देगा, तो उसमें उसका रीनेमिंग कर दो फ्यूम इफेक्ट्स एंड ऑल, एंड जस्ट इसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर ऐसा जा करके छोड़ दो तो वो आ जाएगा और कुछ नहीं करना होता है. ठीक है. सो यहाँ पे टूल बार में दिख भी जाएगा तुमको क्या क्या एक्सिस्टिंग टूल्स है, जिसके अंदर मेरा फ्यूम इफेक्ट्स भी यहाँ पे दिख जाएगा. और इसको सेव करना तो सेव कर लो, इट विल बी बेटर फॉर दिस यूआई सेटिंग. जब तुम क्लोज करो ऑन करो जो भी करो ये यूआई तुम्हारा सेक्शन में रहेगा. तो अभी क्या है कि कहीं भी तुम रहो या कुछ भी करो, इट डजंट मैटर, यू जस्ट क्लिक हियर, इट गोना बी डायरेक्टली हियर. और हालांकि ये 4 है अभी, आई थिंक 4.1 है ये, नो 4.0 ही है, तो इसीलिए तुमको ऐसा स्क्रिप्टिंग करना पड़ रहा है. लेकिन इसके बाद जो आया लाइक 4.2 या फिर 5 जो आ गया ना, उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, वो ऑलरेडी वो टूल बार यहाँ दे चुका है. सो यू डोंट नीड टू गो फॉर दिस सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट. ठीक है. तो ये स्क्रिप्ट करना जरूरी नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है मैं करके रखता हूँ और बस, और कुछ नहीं. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रिप्टिंग करके रखते हैं हम लोग, वॉट एवर. सो फ्यूम इफेक्ट्स एक्चुअली मैं थोड़ा सा और एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूँ, कोई जो भी थे नहीं थे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. फाइन. फ्यूम इफेक्ट्स मेनली हम लोग यूज करते हैं फॉर फ्लूइड इफेक्ट्स, मींस यू नो स्मोक हो गया, फायर हो गया, फ्लेम्स हो गए, इस तरह की चीजों के लिए हम लोग मेनली फ्यूम को यूज किया करते हैं. ब्लास्ट हो गया फायर का, जो भी एक्सप्लोजंस एंड ऑल, सो ये सारे चीजें हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. तो ये फ्यूम इफेक्ट्स का जो कंपनी है, कंपनी का नाम है सिडनी सटी, राइट. तो उसमें अब पहले फ्यूम इफेक्ट से पहले एक और चीज था जिसका नाम था आफ्टरबर्न. अभी भी आफ्टरबर्न है बट वो थोड़ा सा बैकडेटेड हो चुका है अभी, इसलिए फ्यूम इफेक्ट ज्यादातर लोग यूज करते हैं बिकॉज इट्स रियली इजी टू यूज, कोई दिक्कत नहीं होता है. हालांकि अभी तुम लोग अगर कोई 5 यूज कर रहे हो दैट विल बी बेटर, और उसके लिए बेटर है जिसके पास अच्छा खासा जीपीयू है. मतलब ठीक है चल जाएगा, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत अच्छा जीपीयू चाहिए ये वो, ऐसा नहीं है, बट चल जाता है, जीपीयू से अच्छा रिजल्ट दे रहा है. और अभी क्या है कि अगर तुम यहाँ पे फ्यूम इफेक्ट्स करते हो, हम लोगों को अभी के जो जो मैं दिखाने वाला हूँ जिस सॉफ्टवेयर में अभी देख सकते हो इसमें, तो उसमें क्या है ना कि तुम लोग को शेडर वगैरह क्रिएट करना पड़ता है, शेडर क्रिएट करके देना पड़ेगा, राइट. हम लोग उसमें डालेंगे बहुत सारे चीज, बट थ्रू आउट लाइक फिजिकली अगर हम लोग कुछ चीजें करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, वो भी हो सकता है, बट थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है. जैसे कि अगर 5 यूज कर रहे हो, सो 5 में यू विल बी गेटिंग समथिंग कॉल्ड आर्नोल्ड शेडर, राइट. तो हम डायरेक्टली शेडर के थ्रू उसका कलर, उसका टेम्परेचर, उसका स्मोक बुएंसी वगैरह सब चेंज कर सकते हैं. ओके. बट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, एंड वो बहुत ज्यादा जल्दी रिजल्ट देता है. फिर उसका ग्लोबल इल्यूमिनेशन भी अच्छा खासा काम करता है. राइट. ये बहुत अच्छा है, अगर 5 को यूज कर रहे हो दैट विल बी रियली बेटर. मुझे नहीं मालूम तुम लोग कभी भी अटेंड किए हो कि नहीं. मैंने সেটা যেটা বলেন এটা কোথায় পাবো, মানে ফিউম এফেক্টস এর মধ্যে পাবো না ওই ইয়ে রেন্ডারিং অপশন থেকে কিছু চেঞ্জ করতে হবে? नहीं, फ्यूम इफेक्ट्स के अंदर ही मिलेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे चीज जो है तुमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा. राइट. वही मैं बोल रहा था कि पता नहीं तुम लोग कभी वो मतलब अटेंड किए थे कि नहीं किए थे, पता नहीं. मैंने फ्यूम इफेक्ट्स 5 का न्यू फीचर बोल के एक मास्टर क्लास लिया था. ओके. तो अगर उसमें कोई अटेंड किए तो शायद तुम लोग को याद होगा कि उसमें मैंने आर्नोल्ड रेंडरिंग भी बताया था,
कैसे शेडर के थ्रू हम लोग फ्लूइड को काम करा सकते हैं। तो वट एवर, अभी तो इधर 5 नहीं है, बट आई विल ट्राई टू मेंशन दैट एज वेल कि कैसे हम लोग काम करते हैं उसमें। ठीक है, सो मेन काम यही होता है फ्लूइड का। हम लोग इसको पायरो इफेक्ट्स भी बोलते हैं। ओके, ये जान लो पहले, मैं बता दूं। पायरो इफेक्ट्स बोल के भी एक पर्टिकुलर इफेक्ट डिपार्टमेंट होता है। उस पायरो इफेक्ट्स के डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ फायर रिलेटेड या स्मोक रिलेटेड काम ही होता है। नाउ हम लोग यहाँ पे फ्यूम इफेक्ट्स बोल रहे हैं बिकॉज इट्स अ प्लगइन जो कंपनी दे रखा है। बट जो ये इफेक्ट्स का कोर है, मतलब क्या बोलते हैं, हर चीज का एक डिपार्टमेंट होता है, उसको पायरो डिपार्टमेंट बोलते हैं। और यही चीज हुडीनी में भी है, और वो फ्यूम इफेक्ट्स के नाम पे नहीं है, और फ्यूम इफेक्ट्स उसमें यूज भी नहीं होता क्योंकि हुडीनी में इटसेल्फ एक सॉल्वर है, वो पायरो जनरेट करता है। ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ पायरो किस तरह से काम करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ओके, अदरवाइज क्या है ना कि अभी तुम फ्यूम इफेक्ट सीख रहे हो, इसका मतलब थोड़ी है कि तुम जिंदगी भर फ्यूम इफेक्ट में काम करोगे। बट फ्यूम इफेक्ट जिस तरह से काम करता है, वो चीज हर जगह पे, हर क्या कह सकते हैं नो, लाइक वो जिस पर्टिकुलर चीजों के थ्रू काम करता है वो हर जगह सेम है। मैं चाहता हूँ कि वो चीजें तुम लोग पहले जानो, तो बाद में चल करके कभी तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा कि यार ये तो होडिनी है, इसमें कैसे काम करेंगे, तो ये है वो कैसे काम करेंगे। सो ये जो पायरो है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, जिसको हम लोग हीट भी बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, राइट, एंड बुएंसीनेस, ये सारे चीजों के थ्रू काम करता है। नाउ धीरे धीरे बताएंगे क्या है क्या नहीं, किस तरह से काम होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, बट ये 3-4 चीजें हैं। और कोई भी चीज में, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर तुम लोग कुछ पायरो जनरेट कर रहे हो, मतलब अगर कोई फायर या स्मोक या इस तरह की कोई भी चीज तुम लोग जनरेट कर रहे हो, वो एक्चुअली कैलकुलेट होता है थ्रू द नेवियर स्ट्रोक बोल के दो बंदा था। ठीक है, नेवियर एंड स्ट्रोक दो बंदा था, ये दोनों ने ये पायरो का जो सॉल्वर है उसका जो कैलकुलेशंस है वो निकाला था, और वही कैलकुलेशंस के बेसिस पे सारा दुनिया का जितने भी कैलकुलेशंस होता है, जैसे कि नासा का रॉकेट छोड़ता है ना, तो कितना फ्यूल जाएगा, कितने टेम्परेचर एंड प्रेशर के थ्रू वो जाके कितना स्पीड आएगा, और स्पीड से कितना जाएगा, ये जो कैलकुलेशन है ना, वो नेवियर स्ट्रोक के कैलकुलेशन के बेस पे ही होता है। एंड वही कैलकुलेशन के बेस पे यहाँ हम लोग मैक्स, माया या फिर हुडीनी या कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर हम लोग ये फ्लूइड की बात करते हैं, काम करते हैं, तो वो बैकग्राउंड में एक्चुअली जो कैलकुलेट होता है वो नेवियर स्ट्रोक वाला ही कैलकुलेट होता है। सो अगर किसी को जानना है व्हाट इज नेवियर स्ट्रोक, प्लीज गो एंड गूगल इट, सो यू विल अंडरस्टैंड। ओके, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर तुम लोग उसमें जाते हो, माया में जाते हो, देयर इज अ सॉल्वर कॉल्ड नेवियर स्ट्रोक। ऑलराइट, तो ये सब चीजें देख सकते हो, चेक कर सकते हो, प्लीज गो एंड चेक। मैंने शायद रियल फ्लो के टाइम में भी तुम लोगों को बताया था ये चीज है ऐसा। ठीक है, तो लेट्स सी, अब इसमें आते हैं क्या फंक्शनलिटी है इसमें, क्या है। सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे काम करते हैं, इट्स इन अ कंटेनर, राइट। जैसे रियल फ्लो में तुम लोगों को मालूम है, आई टॉक अबाउट voxel, told you na. So voxel is everywhere when it comes to a pyro or a fluid simulation or a smoke or something like that, इस तरह की कोई simulations आते हैं, so the voxel is everywhere, right? Why? Again तुम लोगों को मालूम है कि पिक्सल होता है, voxel means volume pixel, it's a 3-dimensional pixel, तो वो 3-dimensional pixels को लेकर के ही काम करता है, that's why the voxel is there। जैसे कि हम लोग हाइब्रिडो में काम करते थे इनसाइड ऑफ रियल फ्लो टू जनरेट एन एरिया, एंड उसके अंदर ही काम करना होता है, उसके बाहर जाएगा तो नहीं काम होगा ऐसे। तो यहाँ पर भी वही चीज है, व्हाट वी क्रिएट एक्चुअली इज कॉल्ड कंटेनर, राइट। सो अगर तुम यहाँ पे क्लिक करते हो यू विल गेट दैट, अदरवाइज दैट ऑप्शन कि यहाँ पे नीचे आओ, फ्यूम इफेक्ट्स है, देन क्लिक फ्यूम इफेक्ट्स एंड ऑल। मैं बहुत ही लैथकोर आदमी हूँ, तो मैं ऐसा स्क्रिप्ट बनाता हूँ। वैसे क्लिक करो यहाँ पे, ये डायरेक्टली आ जाएगा, and I can hold on control to create a equal container like this, and you can put it up like that, simple. Now what,
दिस इज अ वॉक्सल, एज यू कैन सी रियल फ्लो में भी ऐसा ही था, एंड ये कंट्रोल होता है थ्रू स्पेसिंग, राइट। जो हम लोग वहां पे देख रहे थे डोमेन का रेजोल्यूशन और सेल साइज हम लोग देख रहे थे कि सेल साइज डाउन करने पे वॉक्सल डाउन होता है, यहाँ पे स्पेसिंग डाउन डाउन करने पे ये चीज छोटा होगा, और ये जितना छोटा होगा उतना हाई क्वालिटी वाला चीज बनेगा। ओके सो স্যার স্পেসিং ডাউন করার জন্য বললেন, এটা কি স্পেসিং ডাউন করবেন? ओके लेट मी शो यू। सो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मॉडिफायर लिस्ट में और नीचे आ जाओगे ना, सो देयर इज समथिंग। স্যার ওপরে ছিল, একদম ওপরে স্পেসিং ছিল। नहीं 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 वो छोड़ो ना, उसमें क्या है, ये वॉक्सल ग्रिड में आ जाओ एंड आई वांट टू पुट इट टू ऑटो। इसमें भी जा सकते हो या फिर ऑटो में भी जा सकते हो। ऑटो विल कवर द होल थिंग, एक को छोड़ के, फॉन्ट को छोड़ करके बाकी सबको कवर करेगा। जस्ट अ मिनट, कस्टमाइज प्रेफरेंस व्यू बोर्ड सिलेक्शन प्रीव्यू में हाईलाइट ऑफ रखता हूँ, ये मेरे को बहुत दिक्कत करता है। सो बेसिकली this is what I'm talking about. This is the voxel, as you can see, right? And same voxel back to back दिया हुआ है, right? Now अगर मैं इसको लेकर के जाता हूँ maybe print screen and I'm gonna go to Photoshop, इसमें ज्यादा बेटर समझा पाएंगे। This. So what happens is this. अगर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं ना, और अगर सोचो ये पिक्सल्स है, इतना पिक्सल्स है, सो इट विल बी लाइक पिक्सेलेटेड। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ पिक्सल लाइक यू नो आई गो फॉर 10 by 10 वाला पिक्सल एंड सी थिंग। So now this is a low resolution thing so that you won't get any detail. So अगर मैं एक ऐसा हार्ट बनाता ना तो इस तरह से आ तो जाएगा, लेकिन यू कांट गेट द डिटेलिंग। बट अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1400 by 900 पिक्सल्स है एंड इफ आई एम डूइंग लाइक हार्ट बनाता हूँ, सो यू कैन गेट द डिटेलिंग, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होता है, व्यूएफएक्स कैलकुलेट द टेम्परेचर, बुयांसी एंड ऑल सच थिंग्स। कैसे करता है वो, कुछ सपोज एक ब्लास्ट में बना रहा हूं, सो इट विल बी लाइक दिस, ऑलराइट, समथिंग लाइक ऐसे कोई ब्लास्ट जो है बन गया। अब इसमें कैलकुलेट क्या होगा, वो इतने को एक पिक्सल पकड़ेगा, इतने को एक पकड़ेगा, इतने को एक पकड़ेगा, इट विल बी लाइक पिक्सेलेटेड, देयर विल बी नो मच डिटेल अवेलेबल, राइट। बट वही चीज अगर हम लोग यहाँ पे स्पेसिंग डाउन कर लेते हैं, यू कैन सी द वॉक्सल्स गेटिंग स्मॉलर, अच्छा हाँ हाँ हाँ, राइट। सो अब अगर मैं इसको लेके जाता हूँ एंड इफ आई डू द सेम लाइक प्रिंट स्क्रीन, यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी। सो एज यू कैन सी कि हाँ मेरा जो है अभी डिटेल, मैं कुछ भी करूंगा इट विल गिव मी द लाइक डिटेल, लॉट ऑफ डिटेल अवेलेबल, है ना। प्रिंट स्क्रीन एंड कॉपी पेस्ट, प्रिंट स्क्रीन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ना, जस्ट प्रेस इट एंड देन पेस्ट इट हियर, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेरे को अभी इसमें डिटेल मिलेगा, और जितना डिटेल मिलेगा उतना बेटर होएगा ना मेरा जो चीजें हैं, समझ में आया। हाँ सर बोझा गया। हाँ, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, स्पेसिंग को लेके काम करते हैं। नाउ स्पेसिंग कैसे डिफाइन होता है, हाउ इट डिफाइंस लाइक 1 point समथिंग या फिर कुछ भी ऐसा डिफाइन कैसे होता है, इट डिफाइंस बाय द साइज ऑफ योर container. By default the spacing is 2.515 and it says width इतना 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 ऐसे करके है। So I'm just gonna click here, it's gonna reset everything and see it's जैसे जैसे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ ना, बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना रखता हूँ and then I'm just doing for this। अब ये जितना बड़ा होगा या कुछ भी होगा, now it's defining the spacing, getting it। now ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा स्पेसिंग वो कवर अप करने की कोशिश करेगा। उसके बाद तुम बोल सकते हो नहीं मेरे को अभी थोड़ा ज्यादा जो है स्पेसिंग कम करना है क्योंकि ज्यादा बॉक्सेस चाहिए, सो यू कैन डू इट। बट ज्यादा बड़ा होगा ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लेता है टू सिमुलेट एंड ऑल।
सो ऑब्वियसली मैं भी थोड़ा सा लोकल नॉर्मल रखता हूँ एंड एज यू कैन सी ये ऑटोमेटिक डिफाइन कर लिया कि इतने हाइट विड्थ एंड लेंथ का क्या स्पेसिंग हो सकता है एज अ जनरल। समझ में आया? हाँ सर। ओके फाइन। सो मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ, नन कर देता हूँ, नॉट नाउ सी। अभी तुम बोलोगे सर इतना थोड़ी ना मेरे पास इतना छोटा सा सीन होगा, मेरे पास तो बड़ा सीन हो सकता है। यस ऑफ कोर्स यू कैन हैव दैट। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना, वी गो टू दिस यूनिट सेटअप एंड वी सेटल इट अप लाइक ये इंच में है एंड देन यहाँ पे जेनरिक ना करके वी गो टू मैट्रिक एंड वी कैन सिलेक्ट द सेंटीमीटर मिलीमीटर लाइक दैट करके हम लोग काम करते हैं। सो दैट विल बी बेटर टू वर्क विद। ओके, सो फिलहाल के लिए आज के लिए तो एटलीस्ट नहीं चाहिए। एंड बड़ा सा सीन के लिए हम लोग कभी भी वन सिंगल कंटेनर में काम नहीं करते। What we put, we replicate the containers, okay? अलग अलग रखते हैं ताकि हम लोग अलग अलग उसको काम करा सकते हैं। समझ में आया? কম্পোজিটিং এ অ্যাড হবে, মানে একটা আমি বানিয়ে ধরুন ইয়ে বানিয়ে এফএক্স যার করার কথা সে একটা একটা জায়গায় ব্লাস্ট করে দিয়ে দিল, তো এবার ওই ব্লাস্ট গুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে বসিয়ে তারপর সেটা কি কম্পোজিটিং এ করা হয়? हाँ सी क्या होता है मैं बता दूं थोड़ा सा। अगर मेरे पास सोचो कि इतना बड़ा सा एक सीन है, ठीक है, बहुत बड़ा है, ये और ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा सीन है। व्हाट वी विल डू, अगर मेरे पास बहुत बड़ा सीन आता है ना, सो 100% जान लो, क्योंकि इतना बड़ा सीन है तो सोचो इसमें बिल्डिंग्स भी इतना बड़ा होगा, राइट? बिल्डिंग्स वगैरह अगर है तो वो भी इतना ही बड़ा बन जाएगा। सो इन दैट केस अगर मैं यहाँ पे फ्यूम इफेक्ट्स बनाता हूँ, राइट, सो सोचो कि मेरे को यहां से एक ब्लास्ट चाहिए, ये जगह से टूट करके एक ब्लास्ट हो रहा है। सो आई एम नॉट गोना कवर द होल थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाट आई एम गोना डू इज आई क्रिएट container, I'm gonna put it over there like this, only for that part. अच्छा, Is it clear? now बोलोगे ये तो सर नीचे भी गिरेगा। yes, अगर मेरे को दिख रहा है कि हाँ नीचे गिरने वाला शॉट मेरे को चाहिए, so we'll do that. Otherwise what we do, we just duplicate the container and इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लाइक दिस। ऐसे तो कभी नहीं करते हम लोग वैसे, बट दिखा रहा हूँ वैसे ऐसा। इस तरह से इसको सेकंड वाला को थोड़ा सा बड़ा कर दिया एंड इसको हम लोग कहते हैं एन सीम, ऑलराइट, एन सीम, राइट। सो एन सीम बोल के एक ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, अगर दिखाता हूँ मैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एन सीम हियर, द सिमुलेशन एन सीम, राइट। So basically it's gonna calculate this one as a master grade and ये जो है it will be a slave grade, like उसमें उतना ही बस calculate करेगा जितना उसके अंदर दिखेगा। So it will be very less मेमोरी को बहुत ज्यादा यूज ही नहीं करेगा, बहुत कम यूज करेगा, जितना दिख रहा है उतना काम करेगा। ओके, सो बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं। नहीं एनसीन बहुत पुराने से है, कोई दिक्कत नहीं। ना नতুन থেকে যেটা গ্যালারি সার্ভিস বলছে বাউंडलेस না कितना नाम বলছিল, तो ওইটা কি बाउंडलेस इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है, वो उसमें न्यू बोल के कुछ नहीं है, वो जब स्टार्ट हुआ था फिल्म इफेक्ट सबसे हुआ। बाउंडलेस, बाउंडेड, दीज आर द थिंग्स। क्या होता है, बहुत टाइम पे अपने को ब्लास्ट चाहिए होगा, मैंने ब्लास्ट करा, अब मेरा कंटेनर इतना सा है और उसमें जाकर के अटक रहा है, राइट, दैट बिकम्स बाउंडेड। हम उसको अगर बाउंडलेस कर देंगे, इट्स गोना रोल अप द थिंग, वो ऊपर जाएगा बट द कंटेनर विल बी दैट मच। अब क्या होगा, क्या वो ऊपर का हिस्सा कैलकुलेट नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। समटाइम्स हम लोग करते हैं क्या कि वी स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल थिंग बट वो धीरे धीरे बिग होता जाता है। उसका टेक्निक कुछ अलग है एक्चुअली में, वो एक कंटेनर से हम लोग करना तो नहीं चाहिए, करोगे तो भाई मरोगे, कभी कभार जाके ना वो हैंग हो जाता है, क्योंकि वो उतना दे नहीं पाएगा, तुम्हारा मशीन में नहीं है उतना। हाँ वो होता है, वो बहुत सारे होता है एक्चुअली, हम लोग उसको ओपन एयर में डाल देते हैं।
ठीक है, तो वही होता है बाउंडलेस। ठीक है, बाउंडलेस करेगा ना, तो जो एक्चुअल इनिशियल ब्लास्ट है, इनिशियल ब्लास्ट को जितना कैलकुलेट करने का करेगा, फिर वो ऊपर वोर्टिसिटी के थ्रू जाता रहता है। ठीक है, आएंगे उसमें। और दूसरा सीन जो हम लोग करते हैं, मैं बता दूं और एक बार, अगर मेरे पास इतना बड़ा होता है ना इस तरह से सीन, इंडस्ट्री में एक पाइपलाइन होता है, राइट, पाइपलाइन डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स आईटी लोग से होता है, तो वो लोग क्या करता है, दे नो दे क्रिएट्स अ टूल, ऑलरेडी क्रिएटेड है, और भी चाहिए होगा तो वो लोग क्रिएट करते हैं इधर उधर से, दे क्रिएट समथिंग लाइक कि अगर मेरा वहां से एक यूनिट निकल रहा है, सपोज माया का एक यूनिट इसमें बहुत बड़ा है, फाइन, तो या फिर इसका एक यूनिट माया में जो है बहुत, नहीं मैं उल्टा बोला, माया में जो बहुत बड़ा है वो यहाँ पे आके इत्तू सा बन जाता है छोटा। ठीक है, तो वो जो यूनिट मेजरमेंट है, वो यूनिट मेजरमेंट के लिए एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टूल वो लोग बना रखे हैं कि इसका अगर है तो इसके ग्रिड के बेसिस पे वो आकर के बैठ जाए। एंड वी कैन ऑल्सो डू द रिलेटिव स्केल, जैसे हम लोग इसमें दिखा रहे हैं रियल फ्लो में रिलेटिव स्केल कर रहे हैं ना, वो भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ व्हाट विल हैपन, लेट मी शो यू। अगर बड़ा है, सिमुलेट तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू रेंडर एंड सिमुलेट, राइट। बट अगर ये छोटा है, सोच लो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरा एक जो है काम है वो बहुत ज्यादा छोटा है, पुट इट लाइक दैट। तो मेरे पास एक काम आया था एक चीज के टाइम पे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या चीज है। सपोज ऐसा है, ठीक है, and now it is literally very small, right? अब इसमें अगर हम फ्यूम में काम करने जाएंगे ना, काम होगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इतना छोटा है, उसमें स्पेसिंग वो डाल ही नहीं पाएगा उस हिसाब से, समझ लो। लेट मी शो यू, जस्ट सी, मेरे को इतना ही चाहिए, राइट, सो आई एम गोना गो फॉर दिस, मेरे को इतना चाहिए, मैंने इतना बना लिया। स्पेसिंग देख रहे हैं उसका, इतना छोटा है, तो इसमें सिमुलेट होगा ही नहीं। ऑलराइट, इसमें जो सिमुलेट होगा ना, इससे नीचे तुम कैसे जाओगे, 2 3 1, इसके नीचे तुम कैसे जाओगे, गोना बी लाइक दिस, बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें करना, उसमें सिमुलेट नहीं होगा, तुम जान लगा दो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो व्हाट आई डिड दैट टाइम, जब हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है सेंड टू माया, एंड माया में एक ऑप्शन आता है सेंड टू मैप्स। तो एक यूनिट सेटअप आता है, तो सेटअप वाज इंच में मैं कन्वर्ट कर रहा था, तो सेटअप वाज उसमें जो भी 100% जैसा रहता है उसको हटा करके यहाँ बोल देना पड़ रहा है 1.001, तो वो मैंने निकाला था कुछ चीजें, फिर उसका सेट और उसका सेट में एकदम परफेक्टली आ रहा था। एंड देन भाई तो उसमें जितने सारे, उसमें एक्चुअली था लाइट करना था, उसमें जो मसाल होता है ना, तो मसाल का एक तुम्हारा मुआना बोल के सिनेमा है ना मुआना का, तो उसमें याद है एक गुफा में वो जाती है, तो एक पट से 3 4 ऐसे लैंप जो है उस तरह से जल जाता है, वाइट टॉर्च जिसको कहते हैं, वो जल जाता है, देन वो पूरा सीन घूम करके दिखता है, वो सीन अपना था। तो वो चीज हम लोग उसमें ना वो नहीं हो पा रहा था, वो मैंने करके दिया था उस तरह से। আচ্ছা তো স্যার, this is একটা কথা বলুন, এই যে ধরুন সিনটা ছোট আছে, আমি ধরুন স্কেল করে পুরোটাকে এখানে বড় করে নিলাম, দিয়ে কাজ করলাম, তাহলে কি প্রবলেম? प्रॉब्लम तो इसमें से जो डेटा जाएगा वो इतना स्केल का ही जाएगा ना, फिर तो उसमें जाके मैथ नहीं करेगा। রেন্ডারটা তাড়াতাড়ি হবে তাই তো? नहीं रे, रेंडर जल्दी उसमें, अरे सब रेंडर तो छोड़, दूर की बात है, सिमुलेशन ही नहीं होगा, আচ্ছা, सिमुलेशन ही नहीं होगा। अब अगर सिमुलेशन मैं कर भी लिया, सोच लो मैंने सिमुलेशन अगर मैं कर भी लिया ना इस तरह से, हाँ तो इसका जो तो कैमरा होगा, या फिर कैमरा तो उसी से एक्सपोर्ट करोगे, बट इसका जो साइज या कुछ भी होगा उसमें जाकर के फिर मैच नहीं करेगा, प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए पाइपलाइन डेवलपर्स होते हैं। अच्छा देखो एक शॉट में ना ऐसा कोई नहीं है कि तुम एक शॉट को माया में ही सिर्फ निकाल लोगे, सिर्फ इसमें ही निकालोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लॉट ऑफ स्टूडियो वर्क्स विद द डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स। तो सबसे पहले जो चीज होता है फॉर एफएक्स चीज डिपार्टमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ एक चीज, जो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोगों का एडीएफएक्स की चीज है, वीएफएक्स का चीज है, सारा मैं बता दूं कि अगर
सबसे पहले जो डिसाइड होता है दैट इज द मेजरमेंट, लाइक यूनिट सेटअप। कौन सी कंपनी क्या यूनिट सेटअप में काम करे, क्योंकि एक मूवी का काम 7-8 अलग अलग डिफरेंट कंपनीज करते हैं। सब में एक चीज कॉमन होता है, चाहे सॉफ्टवेयर कॉमन हो चाहे ना हो, एक चीज कॉमन होता है विच इज द यूनिट सेटअप। इफ आई एम डूइंग विथ सेंटीमीटर, द रेस्ट ऑफ द पीपल नीड टू डू दैट इन सेंटीमीटर एज वेल। अगर कोई इंच में कर रहा है, कोई मिलीमीटर में काम कर रहा है, कोई किलोमीटर में काम कर रहा है, दैट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम, क्योंकि डिफरेंट है, पूरा यूनिट ही डिफरेंट है। जब किलोमीटर को इंच में बदलोगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ वो आएगा, राइट। तो इसलिए क्या होता है, दे started start a project with a discussion with which unit setup you want to work with. Most of them use centimeter or they use inches, right? तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिलते हैं। अब आता है काम जो आईटी वाले हैं, जो पाइपलाइन डेवलपर्स हैं, दे व्हाट दे डू, दे हैव अ टूल ऑलरेडी डेवलप्ड है, ये हर जगह पे है। किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई भी सीन को इक्वली हर जगह हर ये पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस टूल्स के। अगर उसी टूल्स के साथ अगर हम लोग कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं, वी विल गेट द एग्जैक्ट सिमिलर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस, सारी चीजें एकदम सिमिलर मिल जाएगा, ठीक है। স্যার তাহলে এইটা করার পরেও তাহলে আপনি যে বলছেন আপনার কাছে সিনটা এসেছিল এরকম ছোট, তো সেক্ষেত্রে মানে এই মানে এইগুলো করার পরেও এইটা কেন হয়, মানে কি ডেটা ট্রান্সফারে কিছু প্রবলেম হয় না, এক্সপোর্ট করতে वो टूल्स मेरे पास नहीं है मेरे भाई, मैं आईएलएम वगैरह की बात कर रहा हूँ। वो टूल्स मेरे पास नहीं है, मैंने कोई डेवलप नहीं किया टूल्स, बट मैंने कुछ कैलकुलेशंस किया था जिसके बेसिस पे मैंने 1.01 जैसे डाला स्केलिंग रेशियो, तो वो रेशियो में माया से मेरे मैक्स के पास बहुत अच्छी तरीके से सेम चीज आ चुका था। अच्छा अच्छा ठीक है, वो मैंने कुछ कैलकुलेशंस करा था उस टाइम। ऐसा नहीं वो टूल्स मेरे पास है, नहीं है, वो इंडस्ट्री में अवेलेबल है। না उसी স্যার से টুলসের জন্য বলিনি, মানে আপনি যে বলছেন এত মিটিং হয়, এত কিছু হয়, এত মানে কোন ইউনিটে কাজ করবে সব ঠিকঠাক করা হয়, তারপরেও তো কিছু ডেভেলপমেন্টের প্রবলেম হয়, যে এই প্রবলেম গুলো আছে, মানে এইগুলো তো নিশ্চয়ই সরকার করে বলে আমরা আজকে আলোচনা করছি না। नहीं, यूनिट सेटअप होता है, नहीं आलोचना इसलिए हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं ना, पहले हम लोग वो सोचते नहीं है। हाँ हम लोग ये सोचते हैं कि यार इस सॉफ्टवेयर में ये काम हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर में वो काम हो जाएगा। वी डोंट थिंक अबाउट हाउ द यूनिट सेटअप विल गो ऑन, राइट। अब सोच, तू बैठ के एफएक्स का काम कर रहा है, इंच में काम किया, हाँ इंच के हिसाब से मैंने काम किया। यहाँ पे तो फिलहाल जो भी मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो तो जेनरिक यूनिट में होगा। सपोज तूने इंच में काम किया और मैंने कहीं सेंटीमीटर में काम किया, दोनों में जो डेटा का फर्क आएगा ना, वो तू मैच नहीं करा पाएगा कभी, हाँ अनेक अनेक तो प्रॉब्लम होगा, राइट। तो इसीलिए यूनिट सेटअप इंडस्ट्री में यही होता है, हमेशा यूनिट सेटअप चेंज मतलब एक रखते हैं, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो। जैसे कि मैं बताऊं, थॉर में कौन सी मूवी थी, रैग्नारोक, उसमें होता है ना तेरा वो हल्क जब जाता है उसी दूसरी दुनिया में जाता है, उस टाइम पे वहां पे जाके थॉर के साथ उसको जो ना एक्शन सीन है, उसमें बहुत वो शॉट 4 स्टूडियो मिलके काम किया, सॉरी 3 स्टूडियो मिलके काम किया था वो वाले शॉट में। एक था आईएलएम जो देख रहा था कि जब कांटेक्ट में आ रहा है तो उसका डस्ट जो कि पैर में डाल रहा है ना, तो पैर डालने के बाद मिट्टी जो थोड़ा सा दब जा रहा था, राइट। या फिर थॉर गिरने के बाद उसमें कुछ मिट्टी का वो हो रहा था, एंड देन वो सारी चीजें, वो सारा इफेक्ट्स है, ठीक है। वो सब देख रहा था, वो देख रहा था आइलैंड। उसमें एक था तो हल्क जो है उसका हथौड़ा या कुछ लेकर के ऐसे मारेगा, देन इधर उधर बहुत सारी चीज ब्लास्ट आउट होता है, तो वो सारी चीज देख रहा था। मैक्स में कर रहे थे वो लोग जैन स्टूडियो, ठीक है। आइलैंड कर रहा था हुडीनी में, राइट। और एक कौन सा स्टूडियो था, आई फॉरगॉट द नेम, वो कर रहे थे वो जो मुंह से उसको मार रहे थे, मुंह से उसका स्प्लिट्स जो निकल रहा था, ये सारे हो रहा था, मुंह से स्प्लिट्स निकल रहा था, वो जो फ्लूइड था, वो तो कोई एक और कर रहा था, और वो लोग कर रहे थे होपफुली रियल फ्लो कुछ चीज। अब ये 3 अलग अलग स्टूडियोज हैं, जैन स्टूडियो मैक्स में काम कर रहे हैं, राइट। मुंबई बेस्ड है, बैंगलोर बेस्ड है, तो वो लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से अलग अलग काम हो रहा है। तो कैसे मैचअप करेगा, नाउ बिकम्स द टूल कि जो हर पाइपलाइन को जोड़ता है, चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, डजंट मैटर, द यूनिट सेटअप विल बी सेम ऑलवेज। समझ रहे हो?
हाँ सर। तो मैं इतना सारा चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूम या कोई भी एफएक्स सॉफ्टवेयर के लिए दिस इज रियली सो इम्पोर्टेंट टू डू। ऑलराइट, सो पिछले दिन सर क्या चीज बना के दिखाए थे? एक नॉर्मल सा जस्ट अ फायर फ्रॉम व्हाट, सिंपल सोर्सेज वगैरह देखे थे। फाइन, सो आई एम गोना क्रिएट अ क्या क्या बना सकते हो वो दिखाए थे सर ने, ऐसे कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखा था। मैं थोड़ा सा अपना ही प्रमोशन करके बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास है उसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बनाया हुआ है। ये मैंने लिखा था, क्या पता नहीं तुम लोगों को ऐसे चीजें बना सकते। दिस इज लाइक बहुत ज्यादा हाई सिमुलेशन है, ये बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला सीन था। मैंने तो उतना हाई सिमुलेशन वाला डाला नहीं है, बट ये तुम्हारा हुआ था ना अपना, हाँ जी, मेटियोर से जो होता है ऊपर से गिरता है। बारात का जो सीन था, आसमान से गोला पड़ा। वो तो तेरा नहीं, 2012 का जो था वो वाला सीन जैसा लगा, बट दिस वाज अ फ्रीलांसिंग। ऑलराइट, तो ये कुछ करा था मैंने। ये एक है टू सिंगल फ्रेम टू रेंडर सिमुलेट नहीं बता रहा, टू रेंडर अ सिंगल फ्रेम इट टूक अराउंड 3 hours, 3 or 3.5 hours फॉर रेंडर वन सिंगल फ्रेम। बहुत सारे चीज था इसमें बहुत सारे चीजें था। ठीक है, क्योंकि इसमें यू कैन सी दैट यहाँ पे कुछ ग्लो वगैरह तो बाद में हालांकि डाला हुआ है, यहाँ पे डिटेल भी उतना नजर नहीं आ रहा बिकॉज ये थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन, उसमें हर एक चीज क्रिस्पनेस दिख रहा था। वो वी में मैं रेंडर कर रहा था बिकॉज दे नीड वी रेंडर, इसलिए ऐसा था। तो सिमुलेट के लिए मैंने जब पूरा फाइनल सिमुलेशन बिठाया, टू अराउंड 3 or 4 days कंटिन्यूअसली सिमुलेशन किया था। 4 days से वो कंटिन्यूअसली सिमुलेट हो रहा था। इट वाज ओनली लाइक 100 and something frames, and one frame simulation data file was 12 GB, one single frame. Alright, and it was around 120 frames के आसपास कुछ था, उतना ही शॉर्ट था और कुछ नहीं था। तो एक फ्रेम इक्वल्स टू 12 GB एंड अप एंड डाउन हो रहा था, कुछ कहीं ज्यादा कहीं कम, बट मोटा मोटी एवरेज 12 GB वाज दैट। हाईएस्ट था 14 GB के आसपास ऐसा एक फ्रेम फॉर सिमुलेशन डेटा जो होता है। हाँ, और रेंडर के लिए एक वो 3 घंटे के आसपास लगा रहा था, और एक फ्रेम का रेंडर साइज वाज अराउंड 400 MB, सो हाई क्वालिटी इट वाज। राइट, नेक्स्ट एक और मैंने बना के दिया था, वो था ये वो करते हैं, वो हम लोग करते हैं ना जब हम लोगों को इसे हम लोग कहते हैं स्कैटर। राइट, वो स्कैटरिंग बनाने के लिए हम लोग करते हैं। वो तो किया है, नहीं वो नहीं कर रहे हैं। स्कैटरिंग तो हम लोग लिया ही नहीं था, मल्टी स्कैटर हम लोग, मैं तो लिया ही नहीं था। उसके अलावा उतना ले रहा था, मल्टी स्कैटर लेता तो पता नहीं कितना जमाना लेता। आएंगे बाद में। So this was another thing जिसमें देख हर एक डिटेल यू विल अंडरस्टैंड दैट फ्लेम के अंदर जो डिटेल होता है, राइट, विल गेट इट। फ्लेम यार नॉर्मल अभी मैं बना के दिखाऊंगा एक चीज, ये नहीं बताने वाला कि हाउ आई डिड दिस वन, बट अभी एक नॉर्मल चीज है मैं कुछ बताने वाला हूँ, उसमें देखना ये सारे डिटेल्स यू वोंट गेट। लाइक ये देख तो टर्बुलेंस यहाँ जा रहा है फिर खत्म हो, यू विल गेट दैट ओके दिस इज अ फ्लेम, डायरेक्टली यू कैन गेट इट। बट अभी मैं जो बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेलिंग है, बहुत सारी चीजें, इवन आई प्रोवाइडेड ऑल दोस फाइल्स एंड आई डोंट नो ये अभी भी अवेलेबल है कि नहीं, बट मैंने इसमें फ्यूजन फाइल, रेंडर, रेट, सब चीजें, प्रोजेक्ट वगैरह दे रखा है फ्री में, सो यू गाइस कैन डाउनलोड एंड सी व्हाटएवर। इसमें भी है, ये भी मैंने कंप्रेस करके दिया हुआ था। सो व्हाटएवर, इस तरह की चीजें जो है ना हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे, इससे बेहतर चीज बना सकते हो। ठीक है, तो
सबसे पहले आते हैं कंटेनर बेस्ड आते हैं, एंड वॉक्सेल के बारे में तुम लोगों को पता है, मैंने बोल भी दिया हाउ इट वर्क्स विद द स्पेसिंग, राइट। सो अभी के टाइम में ना यू विल गेट जीपीयू बेस्ड प्रीव्यू। अभी 5 जो है उसमें जीपीयू बेस्ड प्रीव्यू है, यू वोंट गेट दिस प्रीव्यू वाला आउटपुट विंडो नहीं है, बट इट्स फाइन। मैक्स में मेरे हिसाब से दिस विंडो इज वर्क्स गुड एक्चुअली rather than using the viewport, all right, but it's fine, you can go for it. The first thing is called general, then simulation, then WTP, which is the wavelet turbulence processing. तो ये अलग ही लेवल का चीज है, ठीक है, इसमें अभी नहीं जा रहा है। वेवलेट टर्बुलेंस तब हम लोग यूज करते हैं, हालांकि मैंने जो अभी 2 एग्जांपल्स दिखाए थे उसमें मैंने वेवलेट टर्बुलेंस यूज किया हुआ था, which gives you the crisp डिटेल, एक एक चीज का डिटेल तुमको वो निकल करके देगा, लेकिन इट टेक्स टू लॉन्ग टू सिमुलेट, टू लॉन्ग। हम लोग ना, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, इसमें सिमुलेशन मोड बहुत सारे हैं। पर्सनली आई वर्क विद वेबलेट, पोस्ट में तो मैं गया ही नहीं, मेरे औकात के बाहर है वो, मेरे पीसी में वो ले नहीं सकता, वो जब मेरा था उसे उसमें ले नहीं सकता। पोस्ट इज लाइक औकात से बाहर है, बहुत टाइम लेता है एंड बहुत क्रिस्प रिजल्ट निकालता है, वो तो अलग चीज है। बट विल सी दैट वेबलेट तक तो देखेंगे पक्का, ठीक है। नाउ दिस इज द स्पेसिंग एंड देन आई गॉट दिस ऑल थिंग्स। एडेप्टिवनेस अगर ऑन रहते हैं तो बेटर है। नाउ व्हाट इज एडेप्टिवनेस? जब हम लोग यहाँ पे कुछ सिमुलेट करेंगे, लेट मी सिमुलेट समथिंग। सो ऑब्जेक्ट एंड सोर्सेज में आ जाओ एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिएट फ्रॉम लिस्ट, एंड यहाँ पर भी मिल जाएगा। यू विल गो टू दिस हेल्पर सेक्शंस and just go to this fume effects and you will get all these sources over there as well. I think sir ने दिखाया होगा ये चीज। And there is something called simple source, object source, particle source, lot of things, but I'll go for the simple source only for today. Okay, so I'll go to the simple source, यहाँ से जाओ, otherwise you just go and get it from this list. It is pretty easy to use actually. Click here, get a simple source, it will directly connect to this. अदरवाइज अगर तुम यहाँ पे जाते हो एंड वो चीज लेते हो, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू जस्ट ड्रैग इट, ड्रॉ इट एंड आई वांट टू पुट दिस वन जो एग्जैक्टली इसके सेंटर में डाल देंगे। ये अलाइन करते हैं मैंने, बस इसको ऊपर रखते हैं, क्योंकि ग्रिड के बाहर कुछ भी रहेगा दैट कैन नॉट बी सिमुलेटेड। सर ये अलाइन कौन है बेटा? क्या आई अलाइंड इट जस्ट बेसिकली, सिलेक्ट दिस, शिफ्ट ए एंड सिलेक्ट द थिंग जिसके अलाइनमेंट में रखना, मिडल में रखना। ये जो नीचे ऑप्शन जा रहा ना ये वाला, अगर कोई भी चीज ऐसा नीचे जाता है कंटेनर के बाहर, वो कैलकुलेट नहीं करेगा एज इट, ओके, जैसा एज इट इज है वो रह देगा, रहने देगा वैसे। इसको ऊपर रख देते हैं ताकि मेरा पूरा कैलकुलेट करे। फाइन, आई एम गोना सिलेक्ट इट and right now it is not added here. Now what it asks for, the object और sources, alright। अब इसमें बहुत सारे चीज ऐड होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट देखो, OSDE, सॉरी DWE, alright। O for object, okay, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम इसमें डाल दो, चाहे वो एक बॉक्स है, क्यूब है, टोरस है, whatever it is, I'll explain today this one. This one is called sources, like what type of sources you are using, particle source, normal source, or no object source. This one is called daemons, which is the after one daemons. As you can see, it says after one daemons. We don't use right now. Okay. Then you got wraps, means space wraps or render wraps. Space wrap means if you are having like gravity, if you are having like vortex, sort of things, sort of data. So यहाँ add होता है। This one is called effector. Now effector is something, what can I say? सोचो जैसे मैंने रेल फ्लो में बता रहा था कि अगर मेरे पत्थर पे आके कुछ हो रहा है, वहां पे पर्टिकुलर उस पत्थर के लिए मैं एक पर्टिकुलर कंटेनर बिठा सकता हूँ जिसमें से फोम या कुछ भी चीज निकाल सकते हैं, राइट। Effector is sort of like that. It gives you some sort of bound thing, जिसमें जैसे कि एक एरिया दे दिया कि अगर ये एरिया इसके अंदर गया तो ये यहाँ पे धीरे 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 आग लगने लगेगा। ऐसे 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 जा रहा है, वो उसमें आग लगते हुए जा रहा है। तो यस, वो तो ऐसे भी हो सकता है, कागज वाला आग तो ऐसे ही लगा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ स्पेसिफिक चीजों में बोल रहा हूँ, ठीक है।
सपोज एक स्मोक मैन है, पूरा जा रहा है, नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो पूरा स्मोक से बना हुआ है। नाउ व्हेनेवर इट गेट्स इनटू अ कांटेक्ट या फिर कोई सर्टेन जगह पे वो जा रहा है, उसका सारा स्मोक या तो उड़ जा रहा है या तो नीचे पूरा बह जा रहा है। दिस इज द स्पेसिफिक थिंग जिसके लिए हम लोग इफेक्टर्स यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम इफेक्टर यूज करते हैं। And the last one here is called groups, so we can allow groups to attach here, right? तो हम लोग अगर group में काम करें कुछ करें, we can do it. There is something called use or non-use. Like अगर मैं यहाँ पे इसको add कर रहा हूँ, so I need to go to this, add or pick object, pick the object. Now it's in use. अगर मैं इसको use नहीं करना चाह रहा हूँ, I can just switch it off, so it's not gonna in use, right? इसको use करोगे, अगर ये select करके use करो, so देखो it's in use now, it's white. अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऑफ कर रहा हूं, now it's in black, right? So ऐसे हम लोग कोई भी चीज का यूज होगा कि नहीं होगा ये हम देख सकते हैं। So this is the thing, this is how we do. अब बिना कुछ छेड़े अगर मैं इसमें कुछ भी करता हूं, कोई भी डेटा मैंने चेंज नहीं किया, ऐसे चलाना बोल राइट। तो अगर मैं कुछ भी कर कुछ भी यहाँ पे सिमुलेट कर रहा हूँ, I'm gonna go to this जनरल में कुछ टैब्स ऐसे भी है, जैसे दिखाऊं मैं, जनरल पैरामीटर, इसमें स्पेसिंग, हाइट, विड्थ वगैरह है जो कि इसका है। एंड देयर इज एडेप्टिव जो मैं बता रहा था, एंड उसके बाद है बाउंडलेस, राइट नाउ बाय डिफॉल्ट द कंटेनर्स जो भी मैं लेने वाला हूँ, कंटेनर का हर तरह से, हर दिक से वो बाउंडेड है। यू गो टू सिमुलेशन एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड, फिलहाल इसमें नहीं है, जस्ट गो फॉर इट, इट्स ऑलरेडी बाउंडेड। सो इसमें एडेप्टिवनेस एक आता है। अभी अगर देखो ना यहाँ से कुछ सिमुलेट हो रहा तो एक ब्लू कलर का लाइन जाएगा, जस्ट सी आई एम गोना सिमुलेट दिस वन। बट उससे पहले एक चीज और, आउटपुट पाथ में मेक श्योर दैट where it is being simulated. अगर तुम्हारे पास एक स्पेसिफिक पाथ है, whenever working with a project there will be a specific path, okay? So just select that path, and by default we are using a default simulation mode. You see, this is the default simulation mode. I'm not using a wavelet or something like that. So we will only change the default mode. I'm not gonna change the wavelet, I'm not gonna change the post or something else, because मैं तो इन दोनों से काम ही नहीं कर रहा, मैं भी काम जो कर रहा हूँ वो सिर्फ डिफॉल्ट से कर रहा हूँ। सो यू गोना ओनली चेंज द डिफॉल्ट वन, अदरवाइज इट विल बी इन सी ड्राइव एंड ब्ला 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 जो भी इसका नाम होगा इस तरह से, फाइन। एंड व्हाट आउटपुट इट गिव्स यू, व्हिच इज चैनल्स, बाय डिफॉल्ट इट गिव्स यू द फ्यूल एंड स्मोक। सो starts from 0, end frame is 100, viewport update is like 10, means every 10 frame जब ये पहुंचेगा तब ये जाकर तुमको अपडेट देगा। You can make it 1 as well, like per frame में मेरे को viewport update चाहिए, you can do it, right? Next sensitivity is next। अगर मैं सिर्फ फ्यूल देखना चाहता हूँ या फिर सिर्फ फ्यूल पे काम करना चाहता हूँ या फायर से साथ काम करना चाहता हूँ, it will be there। मिक्स्ड होने पे ये टोटल सिमुलेशन करता है सारे चीजों का, ओके। नेक्स्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू, इट बिकॉज ऑफ दिस एडेप्टिवनेस, लाइक उसका कितना थ्रेशोल्ड वैल्यू रहेगा। फिलहाल जो सिमुलेशन होगा वो पर फ्रेम अप टू 6 MB, उससे ज्यादा नहीं होगा, एंड रेंडर विल अप टू 3 MB, उससे ज्यादा नहीं होगा, फाइन। दिस इज व्हाट सेज। इसका साइज जो है वो 50 × 50 × 46 है, फाइन। अब ये 46 ये जो है इसका रेशियो है, एक्चुअली जो 50 × 50 इसका जो है इसका रेशियो है, इतना साइज है इसका। जैसे जैसे मैं इसका स्पेसिंग डाउन करूंगा इट विल बिकम बिगर, ऑलराइट। हाँ, तो अभी मैं बिना कुछ चेंज किए आई एम जस्ट गोना स्टार्ट द डिफॉल्ट सिमुलेशन, एंड एज यू कैन सी इट गिव्स यू वेरी लेस क्वालिटी स्मोक एंड फायर लाइक दैट, फाइन। नाउ इट्स कटिंग ऑफ, एज यू कैन सी यहाँ से ये कट ऑफ हो रहा है, दिख रहा है। जैसे मैंने बोला था ये एक नील कलर का चीजें निकलेगा यहाँ से। राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग एनी इंफॉर्मेशन इन व्यू पोर्ट। व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे आ जाएंगे फ्यूम इफेक्ट्स में, इनसाइड ऑफ व्यू पोर्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड चैनल्स। व्हाट चैनल यू वांट टू सी इनसाइड ऑफ व्यू पोर्ट,
ऑन द व्यू पोर्ट। तो मैं बोला कि मेरे को अभी फायर, फ्यूल एंड स्मोक तीनों बता दो। यस, यू कैन डू इट एज ऑक्सीजन तक है। तो ज्यादा कम भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिड्यूस एंड कर देता हूँ ना इस तरह से, तो देखो इसको ज्यादा कम कर सकते इस तरह से, फाइन। सो just a minute, 0.1 फाइन। नाउ इसमें ब्लू कलर क्या काम कर रहा है, देखो अगर मेरा इतना सिमुलेट हो रहा है, it gonna calculate only this much of area, not gonna calculate the whole. If I switch off the adaptive, what it's gonna do, अगर मेरा इतना हो रहा है ना, fine, just a minute, let me stop it, okay, पूरा हो जाने को से ये जो हो रहा है ना, now it's calculating the whole box self, जबकि मेरा यहाँ पे या फिर यहाँ पे कोई सिमुलेशन तो है ही नहीं, तब ये फालतू में इतना जगह पूरा कैलकुलेट कर रहा है। अब सोचो ये तो बहुत ही कम रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन वाला चीज है, इसमें जो है पूरा कैलकुलेट कर रहा है। अभी थोड़ा सा ज्यादा रेजोल्यूशन दे देंगे तो वो मतलब हद ही हो जाएगा ना, तो पूरा कैलकुलेट करने में बहुत इट विल टेक टाइम, लाइक सिंपल लाइक दैट। सो आई एम गोना डू दिस वन। तो व्हाट इट विल डू अगेन, it's only calculating this much of area rather than this. It will take less amount of time to simulate anything. समझ में आया? Why we should switch on this one? Is it clear, guys? हाँ सर बुझे গেছে। ऑनलाइन वाले सो गया क्या? हाँ सर, हाँ सर। अरे एक मिनट आ गया, स्पीकर हिल गया रे। हाँ अभी बताओ, सबको ठीक है? कोई हाँ दिक्कत? सर বুঝে গেছে বুঝে গেছে। हाँ सर। Okay, fine. Stop it and that's fine. Now एक चीज और देख लो, फ्यूल होता क्या है? फ्यूल होता है जो आग को जलाता है, मींस आइदर पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, कोई भी चीज, गैस हो गया, दोज आर द थिंग्स कॉल्ड फ्यूल, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ना, दिस इज लाइक फ्यूल, ये जो नील कलर का जल रहा है यहाँ पे, दिस इज लाइक फ्यूल। इसके बाद जो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑरेंज कलर का, दैट इज योर फायर। जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, दैट इज योर स्मोक। You can easily find out that thing. I'm gonna close it and I'll switch it off. मुझे को नहीं कुछ नहीं लगता है। समटाइम्स क्या होता है ना, ये प्रीव्यू करने में थोड़ा टाइम लेता है। सो व्हाट वी डू, स्विच इट ऑफ एंड हम लोग यहाँ पे देख करके काम कर लेते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आई गोना डू इज, ऐसे तो तुम लोगों को देख चुका होगा कि कैसा मेरा सिमुलेशन का जो है ना क्वालिटी है, दिख रहा है। इसमें तुमको ज्यादा बेहतर क्वालिटी नहीं मिल रहा है, इट्स लाइक सिमुलेशन बहुत बेकार था। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ ना, आई एम गोना पुट दैट डाउन, धीरे धीरे डाउन कर रहा हूँ। यू कैन सी दिस द साइज बिकमिंग बिगर, एंड जो सिमुलेशन अप टू है वो भी बढ़ गया, रेंडर अप टू भी बढ़ गया। धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। सो एक मोटा मोटी ऐसे 180 टू 190 या फिर 200 तक का एक स्पेसिंग होता है। एक नॉर्मल सा सिमुलेशन को हम लोग टेस्ट करने के लिए, एक टेस्ट रेजोल्यूशन जिसको कहा जाता है, तो हम लोग इसको मोटा मोटी लेवल पे 180 तक रखते हैं, ठीक है, या 200 तक रख देते हैं मोटा मोटी लेवल पे। एंड नाउ वी गोना सिमुलेट दैट, यू विल सी instantly you will get lot of information and it becomes a little slower, fine, that happens, doesn't matter. And see, जैसे वो उस टाइम पे सीधा निकल रहा था, now you can see there is lot of information and इसका structure ही बदल गया है because it's calculating the grid like this, छोटा छोटा सा, and that's why इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। ज्यादा पिक्सल होने पे जैसे डिटेल होता है उस तरह से, एंड उसका शेप भी जो है बदल गया, उसका काम करने का तरीका भी बदल गया। I'm gonna stop it right now so that you can see the next frame what it was and what it is. Why it is showing you like that? Because मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ सी ड्राइव में,
just a minute. Hangman. Yeah, so let me find out the thing कि कितना है. 447 वाला जो फोल्डर होगा वो अपना है, which is 447, this one. So it creates this sort of cache files. Fine. पहले का जो था वो 34 केबी का था, फ्रॉम 60 फ्रेम तक जो अभी मैंने किया. नाउ इट इज बिकमिंग 3.07 MB, एंड फ्रॉम 61 which is the previous simulation it was 34 KB only. Let me show you that. It is in 60 frame, so the 60 frame is having 3 MB something. The next frame, which is the very low quality, which has the grid like this as well, अब इसमें तुमको क्या मिल रहा है? It was 34 KB only. So you can see the difference. Even you can see the difference in the the shape as well. समझ में आया? Is it clear, guys? How spacing works? হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। Fine. Maybe तुम लोगों को लगेगा স্পেসিং তাহলে মানে আগেরটাতে স্পেসিং কত ছিল স্যার? এখন তো 0.4 করে দিলেন, ওটা 1 ছিল বোধহয়। 1 point something तो था, exact याद नहीं है, but 1.92. Here you can see that. Okay, it was 1.92. Now it is 0.46. तो मैं थोड़ा सा जानबूझ के लेंथी प्रोसेस में तुम लोगों को बता रहा हूँ ये चीजें, ताकि तुम लोगों को एग्जैक्टली समझ में आए. आई मीन बोर मत हो जाना. ठीक है. So this is the main difference between this and this, right? मैं अगर इसको और छोटा कर, मतलब स्पेसिंग को और ज्यादा कम करूंगा ना, इट विल बिकम समथिंग एल्स ना, तो उसमें और ज्यादा डिटेलिंग आएगा. बट डेफिनेटली हम लोग उतना स्पेसिंग डाउन करके डिटेलिंग नहीं लेते हैं. वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विद डिटेलिंग. बहुत अलग अलग चीजें बताते हैं हम लोग. ठीक है. सो आई एम गोना पुट दैट ऑफ फॉर नाउ द ग्रिड. राइट नाउ ये जो ऊपर जा रहा है, व्हाई इट्स कमिंग लाइक दैट? अगर तुम देखोगे यहाँ पर, इट्स गिविंग यू एक ऐसा आ रहा है, गया. इसी ऐसे ही एक रोल आउट दोबारा होगा. ये देखो आया, फिर और एक बार होगा. ऐसे होता ही रहेगा कंटिन्यूअसली. गेटिंग इट? राइट. नाउ व्हाई इट्स हैपनिंग? व्हाई इट्स गोइंग अप साइड, नॉट द डाउन साइड? एरोटा ऊपर दिखा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है. इफ आई डू इट लाइक दिस ना, फर्स्ट टाइम इट विल कम लाइक दिस, नीचे आएगा. and see, and it's going upside like this. Smoke जो है ऊपर जा रहा है. ना ग्रेविटी এখানে No, ग्रेविटी नहीं. ग्रेविटी এখানে কাজে লাগবে না। नहीं, ग्रेविटी यहाँ पर भी काम में आता है, लेकिन फिलहाल ग्रेविटी की चीज नहीं है ये. What's happening is the temperature जो आता है इसका, जब हाई टेम्परेचर वाला, जब कोई एक्सप्लोजन होता है ना, you can easily find out that कि हर एक फायर एंड स्मोक इट राइज अप सो क्विकली, बहुत जल्दी ऊपर आता है. और एक तुम माचिस जला के कोई कहीं जगह पे कोई छोटा मोटा सा आग लगा दिया, तो देखना उसका जो धुआं है वो थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर आता है. राइट. बट जैसे उसमें थोड़ा सा पेट्रोल या केरोसिन डाल दोगे, एकदम तुरंत ऊपर भागेगा. होता है कि नहीं होता है? दैट ऑल बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. If I go to this object and sources, now the sources have some options over there. Simple source parameter में आते हैं lot of things. First is coming as a shape, like what sort of shape you wanna have, as a cylinder, box or sphere. I'm gonna have the sphere right now. Anything. I'm coming to that in just a minute. Next is the diameter, so we can make it bigger or smaller. All right, and then we got the free flow loop. Free flow के बारे में अभी नहीं बताएंगे. We'll get into that later on. Okay, अभी फिलहाल जैसा वैसा रहने दो. Now it's giving you how it should simulate, like कैसा टाइप रहेगा. Is it a volume? Is it a cell? Is it a solid? All right. Now, if I'm doing a volume thing, let me pause it. Okay, it gives you that अंदर वाला पूरा वो दे रहा है.
लगेगा कि पूरा ऐसे आ रहा है, राइट? अंदर नहीं, एक्चुअली उसके ओवल, उसका पूरा शेप जो है ले रखा है. So I'm doing cell, stop it. It creates something like that. दिख रहा है? एक छोटा मोटा सा वो चीज बना रहा है. दिख रहा है ये चीज? That is the cell. It means अंदर कुछ नहीं है, बट एक मोटापा उसमें डाल दिया है. Something solid. Okay. It's gonna be something like this. It looks like cell, but it's actually the whole thing is burning. अंदर का सारा पोर्शन वो बर्न हो रहा है. समझ रहे हो? इसमें कोई hollowness नहीं है. That is what you can see here. Fine. So अभी क्या कर सकते हैं इसको? इसके अलावा और क्या क्या चीज है इसमें? Just a minute. इसके अलावा और क्या चीज है इसमें? वॉल्यूम ही रखते पहले. You have fuel. मैं अगर इसको पूरा बंद कर देता हूँ ना, you will get only the smoke. There will be no fire at all, right? As like कोई भी चीज ऐसे अंडे का ट्रे होता है, उसमें थोड़ा सा गला करके हटा दो, इसमें कुछ नहीं है, कोई फायर नहीं रहेगा, लेकिन स्मोक विल राइज अप. सो बिकॉज ऑफ दैट, सो अगर मैं इसमें बोलता हूँ फिलहाल 1, यू वोंट गेट इट. एक्चुअली उतना ज्यादा कुछ मिलेगा ही नहीं, नथिंग इज देयर. मैं इसको 50% डाल देता हूँ. ठीक, थोड़ा फायर इज कमिंग आउट. इसको थोड़ा कम कर सकता हूँ, लेकिन उतना ज्यादा पहले वाला ज्यादा नहीं रहेगा. ठीक है, मैं बोला कि 20% रहेगा. थोड़ा बहुत जो है ना, देखो अभी फायर जा रहा है, उतना ज्यादा नहीं जा रहा है, हल्का फुल्का सा जा रहा है. मोस्ट ऑफ देम इज स्मोक. ओके, सो आई एम गोना कैंसिल इट. सो डिपेंडिंग ऑन लाइक हाउ द फ्यूल विल तुम देते हो, इसमें डिपेंड करता है. ओके, तो 100% इज हाईएस्ट. इसके अलावा जा नहीं सकते. वी कैन ऑल्सो यूज सॉर्ट ऑफ मैप्स, जिसके बारे में बाद में हम लोग बताएंगे. ऑक्सीजन अभी रहने देते हैं. ऑक्सीजन is a part of your fire, you know that? तो ऑक्सीजन के साथ भी हम लोग खेल सकते थे, how it should blown up, और यहाँ पे रहना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए. lot of things we can do with the oxygen, which is physically accurate. Okay? Now it comes to temperature. Now if I do zero the temperature, you see nothing on a razor, all right? It gives you some sort of velocity so that it's coming out, but it's not rising up. ऊपर नहीं जा रहा है, right? It's coming down or something like that, because there is no temperature. It's something like that. But why it's coming like this? ऐसे बाहर ऐसे आ कैसे रहा? Because of the directional force, turbulence, and lot of things. If I just do it to 0, 0, 0, 0, and very less means, and see it's coming directly downwards. It's not even blowing out a little. समझ में आ रहा है? अब नीचे क्यों आ रहा है? There is a thing. अभी ये 2-3 चीजें इसमें अंदर मैं अभी नहीं जाना चाह रहा. नीचे क्यों आ रहा है? Because there is a force which dragging it up, right? उसके अंदर अभी नहीं जा रहा है. डायरेक्शन में अगर मैं 5 डाल देता हूँ, you will see ये डायरेक्शन में जा रहा है, like that. Why वही डायरेक्शन में जा रहा है? Because इसका डायरेक्शन अपसाइड में है, right? So मैं इसको बोलना चाहूंगा 1. Radius will be 1. I think 10 it was, or maybe 1, not 10. Yeah, it was 1. I forgot actually. Oh, that default चीजें भूल जाते हैं. And it was 0.1 or something like that, right? Yeah. Now it is similar. Fine. Amount, it was 1, 10 frame, and scale was 10 for now. All right, this was the amount for the turbulence value. Fine. तो अगर मैं अभी टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करता हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा करके, let me just go for like 10 for now. You see, it will give some sort of movement towards up. देखो नीचे उतना ज्यादा नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन पहले दफा में नहीं आ रहा है. I'm gonna introduce to like 30 temperature. It's gonna be something like this. It blowing out, थोड़ा सा ऊपर गया like that. और उसको अगर मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ 800, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं इसको. ठीक है, तो तुरंत भागेगा ऊपर like this, and the fire comes through. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर नहीं रहेगा तो फायर कतई नहीं आने वाला.
बट अगर तुम ऐसे चाहते हो कि यार मेरा फायर नहीं आएगा लेकिन टेम्परेचर रहेगा और मेरा स्मोक ऊपर जाएगा, you just go and say fuel 0, that's it, you will get it. ओके देखो कितना तेज भाग रहा है, देखो सर। अब इसको तुम जितना देना चाहते हो उतना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही तेज भागेगा। समझ में आ रहे हैं ऑल दीज ऑप्शंस? इज इट क्लियर? हो जाएगा। ऑक्सीजन को अभी थोड़ा सा रखते हैं ना, वो थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। मैं अगर इसमें कुछ डालता हूँ, सी अगर मैं 100 डालता हूँ एंड आई एम गोना पुट दैट टू 300 व्हिच इज द डिफॉल्ट वन। डिफॉल्ट वन में कैसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, राइट। आई एम गोना पुट द ऑक्सीजन डाउन। इज देयर एनी चेंजेस यू कैन सी? नथिंग, बिकॉज इट वर्क्स समथिंग डिफरेंटली। तो वो मैं बताऊंगा बाद में। आपको तो कुछ बता रहा था, प्लीज। স্যার অক্সিজেনটা তো মানে আগুন ধরাতে কাজে লাগে বা ওরকম যদি আপনি ইউজ করেন তো नहीं সেই नहीं नहीं नहीं, इग्निशन के लिए मेरे पास अलग से सिस्टम है। तू আচ্ছা। जो बोल रहा है ना धीरे धीरे इग्निशन होगा, হ্যাঁ হ্যাঁ। वो अलग चीज है, उसमें आएंगे बाद में, ठीक है। वो আচ্ছা थोड़ा ঠিক बाद में আছে। बताएंगे। ऑक्सीजन का काम थोड़ा सा अलग है। इट वर्क्स व्हेन यू वर्क विद अ फिजिकल सेडर, एट दैट टाइम द ऑक्सीजन विल वर्क। राइट नाउ नथिंग विल हैपन, ऑलराइट। सो इफ आई गो बैक टू द सिमुलेशन, there is something called model with oxygen. All right, and if I go to the renderer, there is something called the shader called channel data, and there is something called black body shader. All right, if we work with all these things, then it is necessary to work with oxygen, otherwise it doesn't matter, is it there or not, it doesn't matter, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बाद में हम बात करेंगे, अभी नहीं, एक दो क्लासेस होने दो फिर बताएंगे। All right, so let me talk about this thing as well. अभी आज मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, एक्चुअली हम लोग का স্যার স্যার हाँ। ওই যে উপরে মাশরুমটা ফর্ম হচ্ছে ওটা সাইজটা কেমন ছোট করতে হবে, মানে বক্সটা বাইরে বেরোলে তো ওটা কেটে যাচ্ছে না। हम आ रहे हैं मैं उसीलिए मैं बोल रहा था कि अभी हम लोग का एक इंट्रोडक्शन तो हुआ है, लाइक व्हाट आई एम showing you today is the detail analyzing of each and everything कि क्या करने से क्या हो सकता है क्या नहीं। सो ये एक दो दिन इंट्रोडक्शन रहता है, देन आफ्टर वी स्टार्ट बिल्डिंग अप थिंग्स एंड ऑल, ओके। तो वही मैं बताने वाला था अभी कि देखो अभी तो ये ऊपर जा रहा है तो ये कट जा रहा है, जैसे मैंने बोला मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा स्पेसिंग डाउन कर देता हूँ, इट विल बी लिटिल क्विक टू सिमुलेशन। अब ये जो मशरूम हो रहा है तो वो पूछ रहा है कि इसका क्या छोटा कर सकते हैं। वेल फ्रैंकली नहीं, क्योंकि कोई ऐसे स्पेसिफिक जगह पे हम लोगों के अंदर वो कंट्रोल मैं कर नहीं सकता, लाइक अपने पास वो ऑप्शन नहीं है टू कंट्रोल अ स्पेसिफिक एरिया, बट यस यू कैन चेंज इट डिफरेंटली, क्योंकि अपने पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस है टू गेट इट, नो लाइक बिगर होगा मशरूम, इसको मशरूम प्लस कहते हैं। तो क्या ये बिगर होगा, क्या वो नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, वी कैन चेंज इट, बट स्पेसिफिकली मेरे को इतना ही स्केल चाहिए, वी कैन डू इट, ऑलराइट। एक चीज और समझ लो, एक बार तुमने जो कर लिया, ओके, वो चीज तुम तो क्या कोई नहीं कर सकता दोबारा, बिकॉज इट्स अ डायनामिक थिंग। वो डायनामिक थिंग में ना हर एक छोटी छोटी बात भी बहुत ज्यादा काम आता है। सपोज किसी में तुम्हारा स्केल था 1, इवन ऐसे भी देखा गया, मैं खुद किया हूं, A to Z, every single thing is same, but my result was different. I don't know why. Because of lot of things हो सकता है। Maybe इसका size, maybe इसका scene size, उसका grid size, a lot of things happen. Alright? QFX में सारी चीज सेम दी हो। You can also save a preset as well. तो अपना preset सेट करो, लोड करो preset, डायरेक्टली वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सीन में वो अलग था, वो सीन में उसका अलग स्पेसिंग है, हो जाएगा डायरेक्टली, वो कभी नहीं कर सकता। अब ये मशरूम ब्लास्ट तुम इसको ठीक तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम इसको चेंज कर सकते हो पूरा कि इतना स्केल चाहिए उतना स्केल चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते, यू कैन डू इट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा सिमुलेशन में। सिमुलेशन में दो सॉल्वर आते हैं, वन इज सीजी, अनदर इज क्विक सीजी। क्विक सीजी हम लोग अभी यूज करते हैं बिकॉज इट इज क्विकर देन बिफोर, physically accurate, right? Quality, we always go about 10, and 10 is the highest one, all right? Maximum iteration,
जब हम लोग टेस्ट रिजल्ट के लिए काम करते हैं, व्हाट वी डू इज वी यूज 75 20 समथिंग लाइक दैट, इट्स क्विक, बहुत जल्दी कर देता है सिमुलेट, एंड वो अपने को समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसा है, ऐसा ऐसा हो जाएगा. बट व्हेन वी डू द फाइनल थिंग, वी शुड गो फॉर द मैक्सिमम इटरेशन, थोड़ा सा ज्यादा ही करना. एटलीस्ट मैं मिनिमम जो रखता हूँ, वो जो मैट्रियड वाला जो दिखा रहा था मैट्रियड, उसमें मैं करीब 600 या 700 रखा था उस चीज को. वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व करता है. ठीक है, वो इटरेशन वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा रखोगे तो बेटर है. बट फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना गो फॉर लाइक 85. इट्स गोना बी वेरी क्विक. फाइन, सी दैट. सो आई स्टॉप इट नाउ. CFL कंडीशन के बारे में हम लोग बाद में आएंगे, अभी नहीं. ये दोनों चीज जो यहाँ पे मैक्सिमम सिमुलेशन स्टेप्स एंड CFL कंडीशन, जस्ट लेट इट बी. अच्छा सा advection stride, this is very important. Now advection stride and vorticity both works together. Okay, individual काम करता है, लेकिन look लाने के लिए दोनों के साथ काम करना पड़ता है. Right now it's the advection stride is 0.5. I'm just gonna make it 0.01. Scale I'm gonna put it 0.1, and the vortex strain I'm gonna put it 0 right now. and अभी देखो क्या होता है. Is there any movement? No movement. There is temperature. There is everything, but no movement available. Why is that so? All because of this vorticity strength. If I do it like 0.01, it's gonna use a little bit of movement, as you can see. ज़्यादा नहीं, बहुत कम दे रहा है. 0.5 कर देते हैं, या फिर 0.1 कर देते हैं फिलहाल. You can see bit of movement happening. Fine, let me just increase it a little. 0.6. अभी इसमें movement है, it's trying to move, cannot done because of this advection stride. So I'm gonna put that to 0.6. Scale was I think 10 of sorry 1. All right. Everything done is. Now you can see it's going outside. So जो look चाहिए वो इसी से आएगा. If I do even the time scale is definitely, time scale भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर time scale को मैं कम कर देता ना, again it's gonna be stop, कुछ नहीं होने वाला. Right now what time scale does, time scale is a multiplier of everything. अगर मैं इसमें 0.6 दिया और यहाँ पे मैंने बोला 2, sorry 1 is the highest one actually. इस तरह से तुम ज्यादा करोगे तो मुश्किल हो जाएगा. 1 is the highest one हम लोग जो यूज करते हैं. अब अगर मैं इसको ज्यादा करता हूँ, इट मींस 6. 1 मतलब इसके साथ इसका इंटू मतलब जो वैल्यू है वही होएगा. आई एम पुटिंग 2 और 6. 2 into 0.6 जितना होगा वो काम करेगा. 6 into 0.6 जितना होगा उतना काम करेगा. लाइक दैट. ओके, अगर मैं इसका 2 दिया ना, अब देखो कितना जल्दी राइज अप करेगा. फाइन, आई एम डूइंग 8. सब मल्टीप्लाई इज द मल्टीप्लायर ऑफ एवरीथिंग. टेम्परेचर के साथ भी हो रहा है, स्मोक के वेलोसिटी के साथ भी हो रहा है. समझ रहे हो? तो टाइम स्केल इज द हाईएस्ट वन जो मैं बताया था, जो हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं, 1. बट उससे ज्यादा भी यूज करते हैं, 0.1 मतलब 1.2 1.3 भी यूज करते हैं, बट बहुत ज्यादा यूज नहीं करते. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कैसा चाहिए मेरे को चाहिए बहुत. যেটা 8 ফাট করলেন তাহলে তো পুরো ফায়ারটাই চলে গেল, মানে স্মোকটা শুধু দেখাচ্ছে এখন. हाँ, क्योंकि फायर का जो है, फायर अभी बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, व्हिच इज द फ्यूल. यहाँ पे बुएंसी कितना है, एक्सपेंशंस कितने हैं, हीट प्रोडक्शन क्या है, बर्न रेट क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड स्मोक डजंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ बाउंडेशन. वो अल्टीमेटली वो जाता ही रहेगा, एंड दैट्स व्हाई फायर इसके अंदर है, बट यू कांट सी इट एक्चुअली. মাল্টিপ্লাই করবে তো আই থট যে ইয়ের মানে এইগুলোর সাথেও, এই প্যারামিটার গুলোর সাথেও মাল্টিপ্লাই হবে. প্যারামিটারগুলোর সাথেও মাল্টিপ্লাই করবে, বাট স্মোক ডাজন্ট হ্যাভ दैट बाउंडेशन ना, तो उसके साथ वो ज्यादा इफेक्टिव है. আচ্ছা আচ্ছা, মানে করে তো দেখতেই হবে, অবভিয়াসলি করে দেখতে হবে. तो ये चीज इसमें फायर है एज यू कैन सी, बट उसमें ज्यादा इसलिए आ रहा है बिकॉज
फायर के ऊपर बेसी इफेक्ट। कोई वो नहीं है, फाउंडेशन इसमें मल्टीप्लाई वगैरह सब अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पे वापस करता हूँ इस तरह से आ जाता है, फाइन। अब ये आ रहा है ना ऐसे मशरूम प्लस, तो मैं इसको वर्टिसिटी स्ट्रेंथ को मैं कम कर देता हूँ बिल्कुल। अब देखो स्ट्रेट गया, मशरूम अभी आ रहा है बट उतना ज्यादा वो नहीं आ रहा है, हल्का सा रोल आउट हुआ। एंड लेट मी चेंज द वर्टिसिटी फ्रॉम दिस, वर्टिसिटी स्ट्रेंथ इज 0, राइट? Advection stride will be 0 for now, 0.1. Advections and vorticity जो करता है ना, देख जब ब्लास्ट होता है ऐसा छोटा 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 रोल आउट्स बनते हैं, ऐसे रोल होता हुए आता है, राइट? जब एक्सप्लोजन पढ़ाएंगे तब वो चीज के बारे में सारे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब vorticity होता है वो उसको फोर्स करना टू ग्रो। vorticity एक फोर्स है जो उसको फोर्स करता है टू ग्रो। एडवेक्शन वो करता है जो एडवेक्ट करता है, हम लोग बोलते हैं एडवेक्ट करना, मतलब जो छोटा छोटा रोल आउट्स है उसको एडिटिव बनाना, उसको रोल आउट करना। So put that to 0.6 like that, ऐसा था। And now we got something called, which is हो गया something called system where the gravity is exist and gravity को मैं इसको माइनस में भी लेके जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं माइनस में लेकर के करता हूँ काम, it becomes like this, तो नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो प्रॉब्लम हैपेंस हर टाइम ये हो रहा है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है तो कट आउट हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो कट आउट हो रहा है। व्हाई? दैट बिकॉज ऑफ दिस जनरल पैरामीटर में आ जाओ, यहाँ पे बाउंडलेस करके एक ऑप्शन आता है एंड बाउंडेड करके एक ऑप्शन आता है। बाउंडलेस एक अलग है, बाउंडेड एक अलग है। यहाँ पे आ जाओ सिमुलेशन में, देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्लॉकिंग साइड व्हिच इज द बाउंडेड साइड। So I'm gonna say every side like the both, for the x it will be both, for the y it will be both, for the z it will be both। इस जहां भी जाए वो वहां जाके कोलाइड होगा, right? So I'm gonna show you this, you see now it's colliding and expanding, exactly, okay fine। अभी हम क्या करेंगे, ग्रेविटी जो मैंने माइनस करा था, I'm gonna put that back to somewhere like this। कुछ ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो माइनस में है और वो नीचे ही आएगा धीरे धीरे। If I do it to like 1, anytime I can change and it's gonna go up। तो मैं ऊपर जाकर देखो धक्का लगेगा, उसमें वो कट ऑफ नहीं होगा, ये लगा भी धक्का। समझ में आया क्या होता है? अब इसको कैंसिल करो। मैं बोला ठीक है, चारों तरफ से मेरा बाउंडेड रहेगा बट मुझे ऊपर की तरफ बाउंडेड नहीं चाहिए। लेट रिलीज दैट वन। व्हाट वी कैन डू, गो टू जनरल, बाउंडलेस विल बी z प्लस। नाउ सी आई एम गोना पुट दैट डाउन, थोड़ा जल्दी होगा। ना सीरीज इसमें कोई कुछ धक्का वक्का नहीं लग रहा है। सीरीज जो ब्लू कलर का कंटेनर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन साइड में अगर कुछ आएगा ना, लेट मी जस्ट स्विच ऑन दिस थिंग्स एक्चुअली। तो अगर साइड में कुछ आ रहा है ना, सी दिस वन इज ब्लॉकिंग देयर, ओके वो ब्लॉक हो रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक नहीं हो रहा क्योंकि वो बाउंडलेस है। अभी समझ में आया? हाँ सर बोझ गए। तो यही चीज है, इसको करते हैं स्टॉप, ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, चिंता नहीं है। आई कैन प्रीव्यू इट बेसिकली। मैंने बोला ব্লকিং সাইডে যদি জেডটা বন্ধ থাকে তাহলেও কি সেমই হবে না আলাদা হবে? नहीं, कहाँ पे ये ब्लॉकिंग, इधर पे इस जगह पे? हाँ सर यहाँ पे तो मैंने ब्लॉकिंग साइड सबको ऑन नहीं रखा है, लेकिन कंडीशन ये डाला है
कि यार मेरा जो Z प्लस होगा उसमें से वो बाउंडलेस रहेगा। दिस अ कंडीशन, समझ रहे हो? ब्लॉक तुम कहीं भी करो, कैसे भी करो, बट यू कैन मेक अ कंडीशन दैट कि मेरा ये साइड जो है खुला रहेगा। ये कर सकते हो तुम, समझ रहे हो? हाँ सर ठीक है। तो अभी देखो इसको प्रीव्यू करने में इसका क्वालिटी चेंज करके 5 डाला, बाय डिफॉल्ट 3 रहता है, बट डायरेक्टली तुम लोग मत डाला करो क्योंकि अगर थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन है इट विल टेक टाइम टू रेंडर एंड तुमको दिखाने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। सो वी कैन गो टू दिस प्रीव्यू ऑप्शन, वी कैन मेक प्रीव्यू थिंग्स। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर के जाता हूँ टू मेक इट प्रॉपर। प्रीव्यू, मेक प्रीव्यू, हालांकि अभी 5 वाले वर्जन में नहीं मिलने वाला। And I'm gonna say okay, so I'm gonna create a preview and it will give you the real-time feedback of that. रीड कर रहा है ना परफेक्ट, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है creating a sequence basically. And see this is okay fine, इसमें नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीव्यू जाएंगे, कौन से पाथ में है, इसमें राइट क्लिक करो, ओपन विथ VLC क्विक टाइम, VLC नहीं है कुछ सारे सीरीज। ये हो गया तुम्हारा प्रीव्यू। क्लियर? इसको करते हैं बंद। तभी कुछ और चीजें मैं बता दूं, अभी किसी की कोलाइडर कैसे हो सकता है, फायर तो मेरा निकल ही रहा है, कोलिजन कैसे करेगा। सो इफ आई टेक टी पॉट जिसमें चाय बन रही होगी, उसको मैं ऊपर रखता हूँ इस तरह से, एंड सपोजली मेरे को अभी स्मोक नहीं चाहिए, व्हाट आई कैन डू, गो टू सिमुलेशन, नीचे आ जाओ, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्मोक, I'm gonna put it off. It means smoke not gonna simulate again. All right. So let me preview it now. देखो ये भी इसमें कुछ हो रहा है क्या, कुछ भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। What we can do? Cancel it because मैंने इसको ऐड ही नहीं किया। ऑब्जेक्ट में जाओ, इसको ऐड कर दो। Now you can see it will collide with that. See now it's colliding. मेरे को अभी फायर जो है थोड़ा सा और ज्यादा ऊपर तक चाहिए होगा, दिस इज व्हाट आई वांट। व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो टू सिमुलेशन, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे मैंने व्यू से कुछ यहाँ पे ऑन करना पड़ता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स अभी ऑफ है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ऐसी बात नहीं, नया वर्जन में तो ये चीज आएगा ही नहीं, तो व्यू बोर्ड में आता है। उस टाइम यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट ऑन करना पड़ता है, लाइक शैडो वगैरह ये सब ऑन करना पड़ता है, तभी ये सब यहाँ पे देता है। इसके बारे में आते हैं बाद में। अभी क्या है कि नीचे आ जाओ, देयर इज सम ऑप्शंस, राइट। फ्यूल बुएंसी, बुएंसी का मतलब ही होता है अ फोर्स जो ऊपर की तरफ भगाता है, ठीक है। It's always in minus. If I do it like 2, how it was? नहीं, वर्टिसिटी जब रोल आउट होता है उसको फोर्स करता है, और फ्यूल के अंदर जो बुएंसी है ये सिर्फ फायर को बर्न्स करेगा, ठीक है। तो -0.1 था, मैं फिलहाल इसको 2 डालता हूँ एंड लेट मी शो यू कितना तेज भाग रहा, दिख रहा है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ और लेट मी स्टॉप इट एंड डू इट अगेन। देखो ये भाग करके ऊपर जा रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, बट वो उतना दूर तक जा ही नहीं पा रहा है, पहुंच ही नहीं पा रहा है जितना भी उसको तेज वो कर, ठीक है। तो फिलहाल जैसा बाय डिफॉल्ट वैसा रखता है -0.1। साइडे ছড়ানোটা কম, इग्निशन टेम्परेचर व्हिच allows you to make something like कि धीरे धीरे जल रहा है, चलना स्टार्ट हुआ, we can go for this ignition things। अभी वो नहीं चाहिए। Now what we are up to is burn rate. Now burn rate is very important thing। अगर burn rate मेरा ज्यादा है
so fire will be smaller. All right, वो छोटा रहेगा. If I do it somewhere like 60, I'm doubling up the thing and see it will be very less. ज़्यादा दूर तक जा ही नहीं पा रहा. Fine. Now I'm gonna put the burn rate down to around like 12, and it's gonna burn very high. It will linger basically. ये बहुत देर तक जलेगा. See this? तो इसके अंदर आया, इसके साथ वो कोलाइड भी किया एंड नाउ इट्स गोइंग अप. समझ में आ रहा है? अभी यहाँ जाके मर जा रहा है. मैं बोलता नहीं मेरे को और ज्यादा चाहिए. फाइन, सो जस्ट गो एंड से आई एम गोना हैव इट अराउंड लाइक 6 से भी कम. अब ये बहुत ऊपर, मतलब वो ऊपर तक जाएगा बहुत. तो जितना कम रखोगे उतना देर तक ये जलेगा. समझ लो? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. I'm gonna put it cancel like that. इसके बाद क्या आता है? You have something called variation. So if I do it like 1, तो इसमें तुमको वेरिएशन देखने को मिलेगा. कुछ ज्यादा देर तक जल रहा है, कुछ कम जल रहा है, like that. ठीक है. एक चीज और है, इट इज इंटरैक्टिव. लाइक मैं अगर एक टोरस लेता हूँ छोटा सा, मतलब यहाँ पे ऐसे जाएगा. ठीक है, एंड लेट मी शो यू. देखो यहाँ पे इंटरैक्ट करेगा. हाँ, ऐड नहीं किया सॉरी. See? স্যার এই ইনপুটটাকে যদি আমি বড় করি তাহলে কি মানে হবে? तो मैं छोटा सा इसमें से सिमुलेशन करता हूँ, कुछ समझ में आएगा. हेलो 300 and all everything is fine. स्मोक का वैल्यू, स्मोक कितने अमाउंट का रहेगा वो तुम बढ़ा सकते हो. I'm gonna put that to 5 for now. Go to the simulation option and I'm gonna use a little bit of turbulence. थोड़ा सा turbulence ऐड करो and you will get into that. यहाँ थोड़ा सा turbulence ऐड करने पे कैसा आ रहा है. थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये तो turbulence डंपिंग हो गया इसलिए ऐसा आ रहा है. बिट ऑफ थोड़ा turbulence डालो. तीनों लॉक रहता है, तुम इंडिविजुअल भी कर सकते हो. And now if you see, it's gonna give you this sort of স্যার রক্তিম কিছু বলছে. कभी ऊपर जा रहा है, इस साइड पे चला गया, আরে স্পিকারটা আবার নেমে গেছে বোধহয় স্যার, শুনতে পাচ্ছি না. So this is তো শুনতে পাচ্ছি না. why, because গ্রুপে হোয়াটসঅ্যাপে শুনতে পাচ্ছি. তারা মেসেজ করছি. so first of all I'm gonna put it স্যার down স্যারকে মেসেজ করতো around like 2 or something. डिटेल को फुल कर देते हैं. एंड फ्रेम मतलब कितने फ्रेम वो पैटर्न चेंज होगा ना, वाला 5.9 फ्रेम में ये पैटर्न चेंज होना चाहिए. करने के बाद I'm gonna put some advection strike down and put the verticity strength 1 for now. Right? The burn rate will be around like 10 or something like that. Variation will fine. Expansion means कितना चौड़ा होगा, कितना फैलेगा, like that. So I'm gonna put it around 1.2. ज्यादा मत कर देना, ये बहुत sensitive value है. From object I'm gonna put the radial a little bigger than that, तो थोड़ा सा 3 में डाल देते हैं. And now see how it's coming. It will give you this sort of simulation, not blast. एक फ्लेम जैसा तुमको, तो इसको स्टॉप करते हैं. आई नीड द स्मोक एज वेल. कॉल कर भाई, नीचे आ जाओ, सिमुलेशंस ऑन कर लो. नाउ यू गोना हैव दिस स्मोक एज वेल. द प्रॉब्लम विद द स्मोक इज द कलर एंड इट्स कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर. मैं नहीं चाहता कि यहाँ से पूरा बाय डिफॉल्ट वो आता रहा है. व्हाट आई कैन डू, आई कैन से
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब आग पकड़ेगा, उसका जो सपोज टेम्परेचर है 45, तो अगर 45 टेम्परेचर है तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं हम लोग, स्मोक जनरेट होगा. दिस इज द कंडीशन दैट आई कैन से. सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं यहां से स्मोक को बंद कर दूंगा. आई एम गोना गो टू दिस टू सेट टू डिसेबल. सिमुलेशन में आ जाओ. अभी अगर देखते हो ना तो देयर विल बी नो स्मोक. सिमुलेशन में आ जाओ एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड फायर क्रिएट्स स्मोक. यूज इट. Smoke density will be around, I don't know, maybe 5 for now. Temperature based होगा. Yes, I'll say 50 temperature threshold पार करेगा तभी smoke generate होगा. And let's check it out. You see, यहाँ से अभी आना start कर दिया, मतलब यहाँ से 50 डिग्री temperature आ रहा है. I'm gonna put it higher to around like 125 or something. Now see, थोड़ा सा ऊपर से ये आना start कर. ये जितना मैं higher करता रहूंगा, वो उस टाइम पे जाकर के स्मोक जनरेट होना स्टार्ट करेगा. लेट मी जस्ट पुट समथिंग लाइक दैट एंड सी देयर इज नो स्मोक एट ऑल. तो वेरी बेसिक. ओके, कोई स्मोक नहीं है क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना टेम्परेचर. मैं इसको करीब करीब रखता हूँ 600 और समथिंग. लेट्स चेक. बॉल, हेलो. अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी. हाँ, तो स्पीकर तो नहीं. देखिए. हाँ, বল বল. হ্যালো. হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ, বল. বল বল. স্যার রক্তিম বলছিল, স্যার ও তো বেরোলো, আসছে আবার। কি বলছিলি বল. Fine, তখন আসবে আসবে. तो right now you can see there is no smoke as well. तो मैं क्या कर सकता है ना, इसका थ्रेशोल्ड कितना था, 300. तो उस बेसिस पे रखेंगे हम. थोड़ा सा और डाउन करेंगे अराउंड लाइक टू समथिंग लाइक दैट. हम ऐसे रखते हैं. एंड नाउ यू शुड हैव स्मोक्स फ्रॉम दैट. समझ में आया? बट दिस इज सो लो क्वालिटी अगेन. স্যার যেটা বলছিলাম, এইখানে যখন আপনি ওই টিপটটাতে কোলাইড করাচ্ছিলেন, তখন যে সোর্সটা যেটা আছে না, তো সোর্সটা একদম পুরো সোজা এরকম উঠছে, ওখানে কোনো টার্বুলেন্স নেই, কিছু নেই, আর বড্ড ছোট লাগছিল এমিটারটা. তো আমি যদি ওটাকে স্কেল করে বড় করি তাহলে কি এমিটারটাও বড় হবে? কাকে স্কেল করে বড় করবি, ইমিটারটাকে, এটাকে নাকি এটাকে? না না, ওটাকে ওটাকে এই, সোর্সটাকে। হ্যাঁ করে দিবি, অসুবিধা নেই কোনো. ওখান থেকে না করে ইট উইল বি বেটার ইফ ইউ ইউজ দিস ওয়ান. আচ্ছা, আই ক্যান ইউজ ইট. ওকে ওকে ওকে, হ্যাঁ এইটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। আর আরেকটা স্যার, এই যেটা উঠছে ওটা একদম মানে একদম স্ট্রেট উঠছিল, তো ওটাতে মানে কোনোভাবে কি আছে যে চারদিকটা ছড়িয়ে উঠবে? মানে আমি ধরুন চাইছি যে एक्सपेंशन ज्यादा कर दो, टर्बुलेंस थोड़ा ज्यादा कर दो. एज यू कैन सी मैंने टर्बुलेंस ज्यादा, अगर मैं टर्बुलेंस और ज्यादा करता हूँ ना, यू कैन सी ये थोड़ा सा और इधर उधर भागेगा. देख रहे हो? हाँ हाँ हाँ, राइट. एंड दैट इज व्हाई मैं इसको थोड़ा कम रखा. तो ऐसा टर्बुलेंस ज्यादा नहीं रखूंगा, 0.21 समथिंग रखूंगा. एंड आई एम गोना यूज द स्केल ऑफ दिस लिटिल बिगर. सो उतना छोटा 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 टर्बुलेंस नहीं बनेगा. इट विल बी लिटिल बिगर पैचेस देन बिफोर. আচ্ছা আচ্ছা It will looks natural basically. হ্যাঁ And I'm gonna change the color of it. So थोड़ा सा मैं इसको रेंडर करूंगा अभी. I'm gonna stop it. जो कलर है इसका, I'll change it to the key mode. Now key mode is basically your gradient mode, and I'm gonna put it to like इस साइड में आ जाएगा, पूरा ब्लैक कर दो. नीचे वाला पार्ट आता है ये. इस कलर का कुछ चीजें हैं, मैं बाद में बताऊंगा कैसे हम लोग कलर करते हैं. यू कैन चेक रेफरेंसेस एज वेल. ऑलराइट. ठीक है, सॉरी.
थोड़ा सा ऐसा रखते हैं फिलहाल के लिए। फाइन। एंड जो स्मोक का कलर है, आई एम गोना गो टू दिस कलर for the smoke, and I'll use a keyless mode, which will be a constant color, maybe black or something like that. Fine. And इसमें स्पेसिंग जो है थोड़ा सा इसका मिनिमम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे, एंड इसका स्पेसिंग जो है थोड़ा सा जो है ठीक करेंगे ताकि प्रॉपर मेरे को थोड़ा सा सिमुलेशन करके बताएं। ठीक है, नाउ इट विल टेक अ लिटिल टाइम but it will be better. Okay, तो हम लोग थोड़ा सा ऐसा डम करके ही लेके आते हैं इसको, ताकि कलर ग्रेडिंग में, कलर करेक्शन में अपने को प्रॉब्लम ना आए कोई। ठीक है, ज्यादा ब्राइट करके लेके आओगे, ज्यादा कुछ करके लेके आओगे, देयर विल बी प्रॉब्लम, लाइक तुम उसको कलर चेंज करने जाओगे प्रॉब्लम आएगा कुछ। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं फ्लैट कलर्स में उसको लेकर के आने के लिए थोड़ा सा। ओके, हालांकि हम लोग अभी भी बढ़ा सकते हैं इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। कलर्स को अगर इंट्रोड्यूस करते हो ना और ज्यादा, तो लाइक 1 कर दिया, यू विल सी दैट मोर कलर एंड मोर ब्राइटनेस विल इंट्रोड्यूस। मैं इसको 5 कर देता हूँ, इट विल बी लाइक ब्लॉक्स आउट लाइक दैट। ओके, तो फिलहाल इसको मैं 1 रखता हूँ, या फिर पॉइंट कैसे था वैसे 0.6 था, तो 0.8 तक रख देता हूँ, मोटा मोटी लेवल पे ठीक ठाक आएगा। एंड ओपेसिटी लेवल हम लोग ज्यादा कर सकते हैं इसका, सो आई विल जस्ट से 3, so it's gonna be a little more solid. Okay, so 3 की जगह मैं like 1.5 कर देता हूँ फिलहाल, उतना ज्यादा हमको नहीं चाहिए। You can see that the smoke looks very flat, and that because of our light. I don't have any light right now, so I'm gonna put a light, standardized spotlight कर देते हैं इसमें। It's much more detailed right now. I'm gonna stop it. Okay, मैं पूरा रेंडर नहीं कर रहा, I'm gonna stop it now. I think it's fine. ये 5 है ना इधर क्वालिटी, इसलिए इतना तकलीफ दे रहा है तुमको, तो क्वालिटी इधर डाउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। Spotlight, I'm gonna put it here somewhere. ठीक है, make sure the shadow is on, as well as in shadow parameter make sure the atmospheric shadow is on, otherwise वो काम नहीं करेगा। ठीक है, then I'm gonna put that illumination में ये लाइट को डाल देंगे, and now if you say preview and see nothing is happening over there right now. All right, कुछ नहीं दिखा रहा है, कोई स्मोक में कुछ भी वो नहीं दिखा रहा है। You just go to this view, shadow is there, just a minute. हल्का सा है, ज्यादा नहीं है, एंड हल्का सा भी नहीं है, एक्चुअली एटमॉस्फेरिक शैडो आ रहा है। क्या करना है, इधर रेंडर में आना है, रेंडर में आने के बाद स्मोक में आना है। There is something called cast and receive shadow, it should be ticked on. Now we will get that shadow, wait a minute. Okay, अब देख रहे हो थोड़ा सा शैडो आ रहा है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेंसिटी, इसमें डेंसिटी ज्यादा नहीं है स्मोक में, इट्स नॉट गिविंग यू दैट मच ऑफ डेंस शैडो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली गो बैक टू द सिमुलेशन एंड टेम्परेचर बेस जहाँ पे मैंने किया हुआ था, यहाँ पे स्मोक को कुछ ज्यादा ही कर देता हूँ, लाइक 28 डेंसिटी डालते हैं, एंड लेट मी जस्ट सिमुलेट दिस वन अगेन, एंड आई एम गोना पुट दैट ऑफ फॉर नाउ, द शैडोज एंड ऑल। फिलहाल कोई शैडो नहीं दिख रहा, এখনো দেখাবে, তখনও আসবে। ओके, अभी भी नहीं दिखा रहा, देखो द शैडो इज फ्लैट, द शैडो हैज मोर इंटेंसिटी। शैडो ऑन कर लो अभी यहाँ से, ये देखो, नाउ यू कैन सी दैट शैडोज। सो ये सिंपल सा एक सोर्स जो तुमको देख रहा है ना, ये सिंपल सोर्स है, मैं ह्यूज ब्लास्ट बना सकता हूँ। जरूरी नहीं है बहुत सारी चीज चाहिए और ये ऐसा नहीं है,
इट्स ऑल अबाउट योर सारे चीजें यहाँ पे, जो सारे चीजें तुम्हारा फ्यूल का, स्मोक का, जो भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे है ना, ये सारे ऑप्शंस ही मेन है जिसके जरिए तुम लोग काम कर सकते हो, ठीक है। एंड सी दिस इज द स्मोक, जिसमें तुमको ऐसे शैडो वैडो दिख रहा है, आराम से डेंसिटी बता रहा है। वन थिंग इज मिसिंग, यू गाइस ऑल नो, दिखने में समझ में आ रहा है, देखने में, कि अगर इतना सारा फायर है, स्मोक में वो इफेक्ट नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग, ओके। और वो हम बस एक फ्रेम के लिए दिखा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तुम्हारा टाइम ले लेता है टू कैलकुलेट एंड रेंडर। सो आई एम गोना पुट इट ऑफ फॉर नाउ, स्टॉप कर देते हैं फिलहाल। गो टू illumination, multi scatter on. Now you can see immediately it's giving you that light into the shadow. और यहाँ से अगर नहीं दिखता बिकॉज ऑफ मल्टी स्कैटर अगर ऑन नहीं होता है तो कभी कभार नहीं दिखता, ठीक है, वो देख लेना। और यहाँ पे आकर के मैं इसका डेप्थ वगैरह चेक कर सकता हूँ। मैंने बोला कि आई नीड टू हैव लाइक 7 डेप्थ, एक्चुअली फॉल ऑफ दे देते हैं 7, ये डेप्थ दे देते हैं 3 की, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 लगते हैं फिलहाल। फायर स्ट्रेंथ को अगर मैं कम कर देता हूँ, 0.5 करता हूँ, यू कैन सी इट्स लिटिल डाउन नाउ, बट इट्स स्टिल अफेक्टिंग दैट थिंग। तो वो चीज हम लोग कंपिंग में करते हैं, यहाँ पे करने जाना बहुत टाइम लेता है इसको रेंडर वेंडर करने में, ठीक है। तो थोड़ा कम रखते हैं, इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, इकोनॉमी फाइन लाइक दैट, जैसे तुमको चाहिए, जिस तरह से तुमको चाहिए उस तरह से तुम जो है रख सकते हो अपने हिसाब से, फाइन। तो दिस लुक्स एक्चुअली नेचुरल। इसका 6 कर देता हूँ, फाइन। इसके अलावा स्मोक में आकर के अपन इधर जो है ना इसका ओपेसिटी बढ़ा सकता है। ओपेसिटी जो है इसमें बोला 3, तो और ज्यादा जो है डेप्थ तुमको बताने वाला है। फाइन, दिस इज नॉट ब्लास्ट। फिर भी ये ब्लास्ट नहीं है, ब्लास्ट का जो शेप, उसका जो थ्रो, वो अलग लेवल का होता है, ये नहीं है। मैं उसके बारे में स्टडी कराऊंगा तुम लोगों को प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं कि एम ही बन जाता है, इट टेक्स टाइम। सकाले কার ভালো করেছিস তো, দেখ না। Fine. This is a low quality simulation as well as a render. उधर मत देख रहे हैं, तकलीफ होती है। ठीक है, कलर का आसमान जमीन का फर्क है, ठीक है। फाइन, सो अभी तुम लोग थोड़ा सा अटेंडेंस वगैरह ले लेते हैं। স্যার বলছি ওই ফিউম এফেক্টসের যে ইয়েটা ছিল না, কন্ট্রোল প্যানেল টাইপের, ওইটা কোথা থেকে খুলেছিলেন একবার দেখিয়ে দেবেন। कंट्रोल पैनल which one? সেই 4.0 যেটা লেখা আছে ফিউম এফেক্টস 4.0, আমি ওখানটা মিস করে গেছিলাম। হ্যাঁ স্যার ওটাই। तो फ्यू में हाँ, वो यहाँ पे नीचे मिल जाएगा ना, ये यहाँ से क्लिक कर। আচ্ছা ঠিক আছে। নতুনটায় শেখাবেন না, কারণ নতুনটা কিন্তু আলাদাই। हाँ सर, নতুনটা দেখছিলাম, নতুনটা পুরো মানে ইয়ে তো পুরোপুরি আলাদা, আমাদের কিছু অসুবিধা হচ্ছে। सेटिंग्स है कि आते बट ये है, सुन मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं है उसमें। सिर्फ चीज ये कि प्रीव्यू विंडो हटा दिया है, ठीक है। बाकी ये सारे जो भी चीज है ना सेम है, सिर्फ तुमको नॉइस के यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा अबाउट द डिटेल्स एंड ऑल थिंग्स। बाकी जो सारे चीज है एवरीथिंग इज सेम टू सेम, कुछ इधर उधर नहीं है, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा सिखाओ उसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसमें एक्चुअली हो गया है ना, सारे जगह में फ्यूम इफेक्ट्स यूज कर रहा हूँ, फ्यूम इफेक्ट्स में काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है। ये सिरसर का मशीन है जो कि लाया है सर ने, मतलब यहाँ का ही मशीन है, लेकिन लेके गए थे लॉकडाउन के टाइम, वो वाला मशीन लाया तो इसमें काम कर रहा है। बाकी किसी में नहीं काम कर रहा है, तो अगर करेगा तो डेफिनेटली मैं उसी में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो कि नया है, लेकिन 90% चीजें सेम है, कुछ इधर उधर नहीं है। यू कैन प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
सो आज डेट क्या है 25। ओके मंथ है 1 स्टार्ट है 12/2/2 দেবব্রত আছে সানু আছে স্বাগতম আছে কৌস্তব আছে অগ্নিশ আছে অয়ন এসছিস অয়ন এসছে অয়ন পূর্বজ্যোতি অমিত অয়ন এসেছে স্যার, অয়নকে দেখতে পাচ্ছি। অয়ন এসছে যে শুভ্রজ্যোতি আসেনি এক্সটেন্ডেড গেমিং নাকি একটা থাকে দেখ এক্সটেন্ডেড ক্রিয়েশন, হ্যাঁ ও আছে। কোথায় রে না না এটা না ওটা না, গেমিং বলে একটা ইয়ে আছে এই দাস্তান গেমিং এটা। না ওটাও না ওটা অমিত অমিত এসছে অমিত না। অমিত অ্যাবসেন্ট আছে রাইট অগ্নিশও অ্যাবসেন্ট আছে হুম, দেখলাম না সুকান্ত আছে অচিরাদিত্য আছে শুভদীপ আছে আয়োজি নেই সুজন সুজন আছে। কৃষ্ণেন্দু আছে স্পন্দন আছে রক্তিম আছিস হ্যাঁ, সুমিত কুমার আদক হ্যাঁ আছে আর কৃষাণু মন্ডল আছে, হ্যাঁ স্যার আছি। শিবম শিবম আছে। বৈশাখী আছে কৃষ্ণা প্রামাণিক আছে দেবাঞ্জন হ্যাঁ আছে। আছে কৃষ্ণকান্তি হ্যাঁ, আছে দেবাশিস আছে সন্ধ্যা আছে অভিষেক আছে পিয়াসা নেই স্যার সন্ধ্যা নেই, সন্ধ্যা নেই। সন্ধ্যা নেই দেখলাম মনে হয়। আর কে জানে, দেখছি মনে হয়। ঠিক আছে আমি ওর কাছে ডেটা নিয়ে নিই তাহলে আজকে আমার ক্লাস আছে স্যার 3টে মিটিং আছে তো FPS এ? হ্যাঁ আছে আছে ওই তো গৌরব বাড়িয়ে দেখি ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে চল টাটা হ্যাঁ স্যার, টাটা। আরে ওটা কেন